Yes, Chair. So, hello everyone. Greetings to all, and we hope that you all are doing great. Today we have Mr. Deepak Sharma ji with us. He is a company secretary and having experience of 15 years and more than 15 years in dealing with advisory services. He has been providing advisory services to his clients, be it corporates or other than corporates. He has been even providing opinions, legal opinions, financial opinions to his clients, Indian as well as multinational companies. He also deals with matters related to private equity in India, international joint ventures, and due diligence process. Apart from this, he is a prominent speaker on topics related to corporate laws, FEMA, audit, listing of shares, and whatnot. So we all welcome CS Deepak Sharma ji with us to throw light upon the topic of producer companies. And as already elaborated by Deepak Sharma ji, that this topic is gaining very much importance these days, considering the fact that the Companies Act 2013, the sections related to producer companies have been operationalized since February 2021. So all these things are coming up, and the importance of producer companies is gaining each day. So I would request Deepak Sharma ji to take over the session today. Over to जय you. जी, Yes. मैं सर को इनवाइट करने से पहले अपने सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करना चाहूँगा। हमारे साथ गुजराल साहब, एक्स चेयरमैन संगरूर ब्रांच, अमित गुप्ता जी फ्रॉम जम्मू, एंड अरुण जी फ्रॉम Gurgaon, and other eminent members joining from the entire region. So once again, welcome to each one of you on this Sunday morning for joining this session. And a special thanks to our speaker and elder brother CS Deepak Bhai for always giving time for these type of topics so that we can organize more and more valuable topic seminar. In last 1 year journey, we have organized more than 300 webinars with the help of Deepak sir and other fellow members. So thank you very much. And we have with us Jaya ji as a moderator, and Kanka Sharma also here. She is also CACS. So Kanka ji, before starting of the topic, please highlight the importance of this topic. Kanka, over to you. थैंक यू सुमित। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगी दीपक शर्मा सर का कि आज उन्होंने इस टॉपिक को उठाया जो कि मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, बट हम लोगों के पास इसकी नॉलेज इतनी नहीं है। तो सर थैंक यू सो मच कि आप आज इस टॉपिक के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं खुद सर्च कर रही थी कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर थैंक यू, आप इसके साथ आज हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। और दीपक शर्मा जी को आगे हैंड ओवर देने से पहले मैं पूरी ऑडियंस से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग उसको कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं। दीपक शर्मा सर ऐसे फैकल्टी है कि इनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है और ये हमारे साथ कम्युनिकेट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आप लोग इस वेबिनार में पूरा उनके साथ कनेक्ट करके रखिएगा। एट द एंड 2 घंटे के बाद जो रिजल्ट आएगा आपको वाकई में ऐसा लगने वाला है कि ये रिजल्ट हमारा पूरा 100% आने वाला है। तो सर प्लीज आप अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सुनना चाहूंगी कि आपको आज प्रोड्यूसर कंपनीज के ऊपर। Thank you so much, Kasa, Sumit ji, the founder member of this beautiful platform, moderator, and other senior members. Kanika ji, thank you so much for briefing in such a good way, actually, and all the distinguished and from various part of this country, actually, and it has become possible only because of the efforts of Sumit ji. And Sumit bhai has been always engaged with me. I think he discussed with me 10 times and we select only 1 or 2 topics. So you can just come to know that how aggressively he just choose the topic, and he choose the topic for the benefit of all, actually, either CAs, CS, advocates, or any stakeholder, be it businessmen and all. टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बैकग्राउंड और आपको दे दूं इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक प्रोड्यूसर कंपनी का 2019 फरवरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2002 से ये यात्रा शुरू हुई थी जब प्रोड्यूसर कंपनी फर्स्ट टाइम आया, और उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में हमें नए रूल्स मिले 2021 के अंदर, और नए रूल्स आने के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि हमें प्रोड्यूसर कंपनी में काम कैसे करना है।
मैं अपनी पीपीटी अभी आपसे शुरू करूंगा, शेयर करूंगा। लेकिन मैं बहुत लकी हूं बिकॉज जब प्रोड्यूसर कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 में डाला गया तो फॉर्चुनेटली मुझे टाटा केमिकल से एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला। मैं बहुत बड़ा इसलिए कहूंगा बिकॉज मैं अपनी अर्ली स्टेज ऑफ प्रैक्टिस में था वे बैक इन 2005 एंड 6, और मुझे असाइनमेंट मिला कि ऑल ओवर इंडिया में टाटा केमिकल्स के लिए काफी प्रोड्यूसर कंपनीज को बनाया जाना है और उसको ऑपरेशनलाइज किया जाना है। सो मैं बहुत भाग्यशाली था कि उस समय उस जर्नी में मैं टाटा केमिकल्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया और ऐसे ग्रुप के साथ काम किया जो ग्रुप हर चीज, प्रिंसिपल्स के लिए, डिग्निटी के लिए, हर चीज के लिए जाना जाता है। मैंने बहुत बारीकियों से इस प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझा बिकॉज मेरे को ना केवल इंक ऑपरेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्ट किया गया था, बल्कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर कंपनी के, जितने स्टेक होल्डर्स हैं प्रोड्यूसर कंपनी के, उनको ट्रेन करने के लिए भी हमें मैनुअल तैयार करने के लिए और स्पेशली ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया। और खुद टाटा ने पहले हमें ट्रेनिंग दिया। मैं प्रैक्टिस में ही था, मैं काफी वर्कशॉप टाटा केमिकल्स की ऑर्गेनाइज होती थी, उनको चुनता था, सुनता था और जाके मैं अटेंड किया करता था। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ये 2010 की बात है, 2010 तक शायद ये बात रही होगी, आपके इस भाई ने इंडिया में करीब 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी को उस टाइम इनकॉर्पोरेट किया था। अब तो वो नंबर बढ़ रहा है, वो नंबर मैं आपको दिखाऊंगा। और उसी का एक नतीजा ये हुआ कि जब मैं टाटा केमिकल्स के लिए काम कर रहा था तो मुझे वॉलमार्ट फाउंडेशन से भी एक कॉल आई, और वॉलमार्ट फाउंडेशन के लिए मैंने रिसेंटली 2018 तक इस प्रोड्यूसर कंपनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत प्रैक्टिकली काम किया। तो इस टॉपिक को मैं बड़े हार्ट से, बड़े प्रैक्टिकल वे में, बड़े डीप नॉलेज के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, आपके क्वेश्चन को इनवाइट करूंगा और आपके जितने डाउट्स हैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे के सेशन के बाद, जो कासा की हमेशा एक बहुत बड़ी इंटेंशन रहती है कि अपने मेंबर्स के लिए वो हमेशा उनको अपडेट करता रहे, तो उसको मैं कहीं ना कहीं पूरा कर पाऊंगा। तो विद योर अप्रूवल मैं इस पीपीटी की छोटी सी यात्रा को शुरू करता हूं, जिससे एक फॉर्मल वे में मैं इस टॉपिक को आपको समझा पाऊं। बीच बीच में आप कभी भी क्वेश्चन पूछें, मैं हर 15 मिनट के बाद मॉडरेटर से पूछूंगा कि क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो ये 15 मिनट के बाद आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मॉडरेटर मुझसे पूछ सकती हैं और उसके जवाब में हर 15 मिनट के बाद अपने आप दे सकता हूं, या जब भी मॉडरेटर मुझे बीच में रोकना चाहे हर क्वेश्चन पे रोक दीजिए मुझे, और बीच में मैं कनेक्ट करके उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा आपको। तो अपने क्वेश्चन को मत रोकिएगा, क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो एफडीआई से रिलेटेड हो, चाहे वो फेमा से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो या प्रोड्यूसर कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। मैं आपको शुरू में ही एक छोटा सा इसका जेनेसिस दे रहा हूं जिससे आपकी समझ बहुत अच्छे से हो जाए। अब आप ये देखेंगे कि जब आपका क्लाइंट आपके चैम्बर में आता है या आपको अपने किसी स्टेक होल्डर के लिए प्रोड्यूसर कंपनी का काम करना होता है, तो आपको लेना कहां से है, कहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बिकॉज जब तक मैं ओवर द टेबल, अक्रॉस द टेबल अपने क्लाइंट के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ना बिता लूं और उसको ना समझा दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या समझ कर आए हो और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, तब तक शायद क्लाइंट आपसे बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं होता है कि प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट वाकई में इस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर मुझे बिल्कुल 0 से 100 तक मिल जाएगा। सो मैं बीच में काफी लाइव एग्जांपल्स आपको दूंगा जो आपके लिए रियली एक बून का काम करेंगे, और आई विश कि आप इस सेशन के बाद ये जान पाए कि एग्जैक्टली आप आज क्या पढ़ पा रहे हैं और आपको क्या लेना चाहिए था। तो दिस इज व्हाट आपको जो अपनी यात्रा शुरू करनी है वो शुरू करनी है इसकी बैकग्राउंड से माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो बैकग्राउंड है ये बहुत ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री राइट जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिसका 70% आज भी हम पार्ट एग्रीकल्चर से लेते हैं। सो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से प्रोड्यूसर कंपनी का कैसे ओरिजिन होता है। सो दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट in India has its origin to the agricultural allied sector. When I say allied sector, so whatever sectors are associated with the agriculture, they are coupled with that actually. और प्रोड्यूसर कंपनी में जब मैं आगे डेफिनेशन आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि प्रोड्यूसर कौन है, तो वहां आप allied sector को भी देखेंगे। It was originally evolved as a mechanism for pooling the people's meager resource. When I say meager resource, then you will find
दैट आज एज ए फार्मर मेरे पास शायद 1 बीघा भी जमीन नहीं है, लेकिन कुछ फार्मर्स है जिनके पास 500 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, बड़ी एकड़। बट जो मीगर रिसोर्स है, अगर 1 एकड़ में मैं अपनी खेती करना चाहता हूं तो मुझे अपने एफर्ट्स को कैसे कलेक्ट करना है, अपने मैकेनिज्म को कैसे पूल करना है, गवर्नमेंट से मुझे कैसे बेनिफिट लेना है, और इस पूलिंग का जो आज एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस कॉन्सेप्ट के अंदर फार्मर्स को, उसको हम समझेंगे। तो मीगर रिसोर्स को आप जस्ट एक जगह पूल करेंगे, it will have the advantage of the economic of scales also. तो छोटा छोटा करके बड़ा बनता है। तो जब छोटे छोटे ये ग्रुप्स हम बना लेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रोड्यूसर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो ये प्रोड्यूसर कंपनी मिलकर एक बहुत बड़ा इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर डालने वाली है। और ये आप आज से आप काउंट कर लीजिए, आफ्टर 5 years आपको ये बहुत बड़ा एक चेंज नजर आने वाला है। नाउ beginning of this organized cooperative movement could be linked to the nidhis in Madras province. So Madras province की हम ब्रिटिश टाइम में बात करते हैं, और कुछ निधीज थी उस टाइम जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century बहुत ऑपरेटिव थी। They were similar to the credit cooperative today. जैसे क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, कॉपरेटिव्स होती हैं, कॉर्पोरेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने एक फ्रेंडली ग्रुप को लोन देती हैं, फैसिलिटीज देती हैं उनकी छोटी छोटी नीड को पूरा करने के लिए। इसी तरह से एग्रीकल्चर मूवमेंट को पूरा करने के लिए भी हमें ये कोऑपरेटिव मूवमेंट में निधीज टाइप की मद्रास प्रोविंस के अंदर मिली पहली बार, जब हिस्ट्री में हम जाते हैं। नाउ अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स व्हिच वर सिमिलर टू क्रेडिट कोऑपरेटिव्स टुडे, दे वर सिमिलर टू द प्रोड्यूसर कंपनी कॉन्सेप्ट व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडे। नाउ अदर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स like consumer cooperatives, they were also organized in 90s. तो एक साल आपके पास निकल कर आ गया कि 1990s में कुछ वाइब्रेशन इकट्ठी हो गई थी, शुरू हो गई थी, प्रोड्यूसर कंपनी की कुछ वॉइस आने लग गई थी गवर्नमेंट के गलियारों में, ब्यूरोक्रेटिक गलियारों में, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कुछ एक छोटी सी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि इस मूवमेंट को, जो कि बहुत बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसको प्रोड्यूसर कंपनीज के कॉन्सेप्ट में हम कैसे लेकर जाएं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव, दिस इज अ ऑटोनॉमस एसोसिएशन, जो हम लोग समझते भी हैं, आप भी समझते हैं। दिस इज द ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। तो ये 3 तरीके की नीड्स को पूरा करने के लिए ये वॉलंटरी ऑटोनॉमस एसोसिएशन बनी, जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को जन्म देती है। नाउ ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं, दे आर ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड, दे आर द कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस, एंड दीज कोऑपरेटिव्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो सेल्फ हेल्प है। इसका मतलब 10 लोग मिलके अपनी खुद की हेल्प करने के लिए, जिनके पास एक मीगर रिसोर्स है, छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस हैं, वो कैसे मिलकर आगे बढ़े, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करते हैं। और यही सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़े होकर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बन जाएंगे आगे जाकर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ इक्वालिटी, इक्विटी एंड सॉलिडेरिटी, इनके कुछ अदर इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझने चाहिए। नाउ इन ट्रेडिशन टू देयर फाउंडर्स, कोऑपरेटिव मेंबर्स बिलीव in the ethical value of honesty, openness, social responsibility and caring for others. देखिए, जो टिपिकल कमर्शियल लैंग्वेज में मैं बिजनेस की बात करता हूं, उसमें शायद इसमें से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी एब्सेंट होंगी, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जब मैं बात करता हूं, इन सबका होना जरूरी है, चाहे वो एथिकल वैल्यूज हो, ऑनेस्टी हो, ओपननेस हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या केयरिंग फॉर अदर्स हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए इस बात को कि कोऑपरेटिव मूवमेंट एक बहुत जबरदस्त ऑटोनॉमस एसोसिएशन है, which is created by the persons who are united together, who are united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs. Now my dear friends, जब हम ये पढ़ लेते हैं तो हमें कुछ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स नजर आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है जिसको मैनचेस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कहते हैं, और ये अलायंस कांग्रेस 1995 में कॉन्स्टिट्यूट होके उसने कुछ काम किया और उसने 7 बेसिक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को प्रतिपादित किया, उनको इंट्रोड्यूस किया, दे वर जस्ट प्रोनाउंस्ड। अब ये बेसिक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या थे, इनको जरूर याद रखना है आपने, बिकॉज जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ
प्रोड्यूसर कंपनी की बात करेंगे तो आप इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के बात करें। पहला, ये जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, इसमें पहला प्रिंसिपल है कि ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज आर वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। इसका मतलब कोई भी ओपन माइंड के साथ वॉलंटरली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, पहली बात। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी कनेक्ट होती है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, there is a hierarchy system in the movement, the cooperative movements and cooperative societies working under the ambit of agriculture and for pooling the meager resource of all the stakeholders. Members economic participation, autonomy and independence of the members and the society, education, how one member help the other, training and information, cooperation among cooperatives. सो दो कोऑपरेटिव मिलकर भी ज्वाइन कर सकती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकती हैं, हाथ बटा सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स कहलाता है। कंसर्न फॉर कम्युनिटी, ऑलवेज इनका सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है कि दे आर हैविंग द कंसर्न फॉर द कम्युनिटी। तो इन 7 बेसिक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को जो डिक्लेरेशन ऑफ मैनचेस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बना 1995 ने, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया, माय डियर फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द लॉज व्हिच गवर्न दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज? as a chartered accountant, as a company secretary, as a CMA, as an advocate, you know that. Now, to understand better and in order to administer the operations of cooperative societies where membership was from more than one province, the government enacted the Multi-Unit Cooperative Societies Act 1942। तो देखिए इसकी जड़ें कहां जा रही हैं, जरा पकड़िए उन जड़ों को, तभी तो आप आज 2021 में पहुंच पाएंगे। It was subsequently replaced by the Multi-State Cooperative Societies Act 1984। देखिए ठीक 42 साल बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हमारे यहाँ अमेंड होकर बना, जिसको एंट्री नंबर 44 यूनियन लिस्ट के अंदर जगह दी गई अंडर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ Multi-State Cooperative Society Act 1984 has been recodified. It was passed by the Parliament in May 2002 and it was notified on 3rd July 2002। तो अब आप ये समझ गए हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया जा रहा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है, लोगों की रिसोर्सेज को, जो मीगर रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट पूलिंग करने के लिए बारे में बताया जा रहा है, कुछ कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया जो कि कैरेक्टरिस्टिक की तरह काम करते हैं, और ये यात्रा 2002 तक आ गई। नाउ डॉक्टर वाई के अलग was a prominent economist, was a prominent personality in the era, in this era. A committee was constituted on 1st November 1999। अब देखिए जस्ट इससे पहले 1984 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बना, कॉडिफाइड हुआ 2002 में, बट इस कॉडिफिकेशन से पहले एक 1999 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे और उसके चेयरमैन साहब थे डॉक्टर वाई के अलग। He was an eminent economist. He was a former union minister to conduct an extensive study of the need, keeping in view the corporatization of the cooperative movement। यहां से अब आपको समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर का जो एक व्यू है उसको कैसे एंटरप्राइजिंग बना जाएगा by having corporatization of the cooperative movement and to make recommendation thereof। So they were studying the market, they were studying the other market, the US market and all, and on the basis of the recommendation of the expert committee, the government of India introduced a bill for amendment in the Companies Act 1956 at that point of time, and a bill was introduced for the amendment in the Companies Act 1956 and a part 9A in the act was inserted। This amendment bill was introduced in the Lok Sabha on 31st August 2001 and being bill number 88, it was approved by it on 10 December 2002। तो 2002 में एक पार्ट 9A आ चुका था और ये पार्ट 9A कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद भी 2020-21 तक हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का हिस्सा रहा, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 जब 1 अप्रैल 2014 से अप्लाई हुआ,
इंप्लीमेंट हुआ तो वहां पर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट नहीं डाला गया, उसके डिफरेंट रूल्स नहीं बनाए गए। इसमें कहा गया कि जो पार्ट 9A है वो सरवाइव करेगा और ये ही चलता रहेगा। तो 1 अप्रैल 2014 से 2021 तक हमने जो प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ही बनाई। बाई की अलग कमेटी बनने के बाद और ये इंसर्ट होने के बाद कुछ साइलेंट फीचर थे उस बिल के जो कि आपको समझने पड़ेंगे। इस बिल का ऑब्जेक्टिव था, दिस बिल ऑफर्ड ए स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट क्रिएट्स द पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसर ओन्ड एंटरप्राइजेस टू कंपीट विद एंटरप्राइजेस। अब उस टाइम देखिए एफएमसीजी सेक्टर को जरा एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ दीजिए, अपने थॉट प्रोसेस में ले आइए। आप अपने किसी भी क्लाइंट को देखिए जो एफएमसीजी में काम करता है, उसका रॉ मटेरियल कहां से आता होगा? एग्रीकल्चर से आता होगा, एलाइड सेक्टर से आता होगा। तो एफएमसीजी कंपनीज तो बहुत ऊंचा जा रही हैं, बट फार्मर्स कहां जा रहे थे? तो फार्मर्स को भी वो इक्वल प्ले ग्राउंड देने के लिए, एक फेयर ग्राउंड देने के लिए, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देने के लिए और एक पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए प्रोड्यूसर ओन एंटरप्राइजेस जो कि बाकी कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस के साथ कंपीट कर पाए, इस बिल की ये खासियत थी। प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट को बनाने के साथ साथ साइलेंट फीचर्स को रखा गया। It also provided for the formation and registration of producer companies, which included the mutual assistance and cooperative principles within the more liberal regulatory framework, which are afforded by the company law with suitable adaptations. It means Companies Act 1956 का ये एक पार्ट 9A अलग से जुड़ चुका था, प्रोड्यूसर कंपनी आ चुकी थी और प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन भी आ चुकी थी। It also provided an opportunity to cooperative institutions, cooperative societies to voluntarily transform themselves, to convert themselves into new form of producer company, which are governed under the Companies Act 1956. तो देखिए जनाब, आप कहां पहुंच गए? आपने पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट को पढ़ा, वाई के अलग कमेटीज को पढ़ा, उसके बाद कंपनीज एक्ट में पार्ट 9A जोड़ा गया, 2002 में प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया और इस कंपनीज एक्ट 1956 के इस न्यू चैप्टर को आप कह सकते हैं, न्यू पार्ट को, साइलेंट फीचर्स जो थे वहां पर ये कहा गया कि इट विल गिव अ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इट विल प्रोवाइड ए पोटेंशियल फॉर द प्रोड्यूसर ओन एंटरप्राइजेस and it will provide formation registration processes for the producer company, first time ever in the Companies Act, my dear friends. Now Companies Amendment Act 2020 मैं immediately आ जाता हूं। तो Companies Act जो Amendment 2020 आया उसमें चैप्टर 21A जोड़ा गया है। It has become effective from 28 सितंबर 2020, सेक्शन नंबर 378 है। तो इसको आप याद रखें, आपको यही पढ़ना है अब आगे प्रोड्यूसर कंपनी में काम करने के लिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि प्रोड्यूसर कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि दिए गए हैं और इन प्रोड्यूसर कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आपने ध्यान रखना है और मुझे आपको ये इंटीमेट करना पड़ेगा रिलेटिंग टू प्रोड्यूसर कंपनी कि हमें प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन की टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा जो मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मेंबर्स हैव नेसेसरली टू बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या एक कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोड्यूसर कंपनी बना सकता है? आंसर इज यस, बना सकता है अगर वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो वो ही लोग इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट्स या सोसाइटीज प्रोड्यूसर कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। अब मुझे आपको ये नॉलेज शेयर करनी है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे। नेम ऑफ द कंपनी शैल एंड विद द वर्ड्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इस जो भी कंपनी का नाम ले आप XYZ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तो उस कंपनी का नाम जो एंड होगा वो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से होगा। तो आप जब भी नाम अप्लाई करेंगे उसके अंत में आप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगाएंगे। आप लिमिटेड नहीं लगाएंगे, केवल प्रोड्यूसर नहीं लगाएंगे, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगाएंगे। अब इसको देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह बन रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू दीज कंपनीज। देखिए ये कंपनी कैसी लग रही है? पब्लिक कंपनी लग रही है। मैक्सिमम नंबर इस पे एप्लीकेबल नहीं है।
बट पेक्युलरिटी क्या है इसकी? आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द प्रोड्यूसर कंपनी शैल बिकम एज इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं, जितनी भी लिबर्टीज दी गई हैं, जितने भी एग्जाम्पशंस दी गई हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को एप्लीकेबल हो जाएंगी। व्हाई? बिकॉज आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, डिस्पाइट द फैक्ट द कंपनीज नेम एंड्स with producer company limited, it will be deemed that it is a private limited company for the purpose of application of law and administration of the company. कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस कंपनी, और मेंबर्स कौन होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, वो 10 होंगे। तो 10 मेंबर्स के साथ इस कंपनी का जन्म होगा। शेयर कैपिटल जो प्रोड्यूसर कंपनी की है, शेल कंसिस्ट ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स, नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी एप्लीकेबल। Minimum 5 and not more than 15 directors would be there. तो मिनिमम 5 डायरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे। प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, लिमिटेड कंपनी में 3 होते हैं, बाकी कहीं और नहीं होते। मैक्सिमम मेंबरशिप है, 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। बट यहाँ मिनिमम 5 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, बट 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। उसके मेंबर्स मिनिमम 10 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ऐसी ऐसी प्रोड्यूसर कंपनियां इंडिया में हैं जिनके 5,500 6,000 मेंबर्स हैं। प्रोड्यूसर कंपनी कैन कैरी ओनली एक्टिविटी विच आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। अब वो कौन सी एक्टिविटीज होंगी? एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगी, एलाइड एग्रीकल्चर होंगी, उसको हम समझेंगे आगे। ओनली इंडिविजुअल्स विल हैव द वोटिंग राइट्स। इट शैल बी बेस्ड ऑन ए सिंगल वोट फॉर एवरी मेंबर। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 एकड़ जमीन थी, आप आ गए प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बनकर, प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर बनके, और एक बंदा 10 एकड़ जमीन लेकर बैठा है तो उसको ज्यादा वोट मिल जाएगी। यहाँ वोट बिल्कुल सिस्टम क्लियर है डेमोक्रेटिकली। चाहे आपके पास 1 एकड़ है, चाहे आपके पास 10 एकड़ है, मेंबर रिमेन्स द मेंबर, और आपको 1 वोट एक सिंगल एंटिटी पर मिल जाएगी। फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए आपको, सीईओ, which will be appointed by the board of directors, my dear friends. So these are important provisions for the producer company. और जब भी आप कॉन्सेप्ट को देखें तो आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा इसको समझने की जरूरत होगी, जो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। Deepak sir, I have an issue. Yeah, please. Deepak sir, can a producer company be a member of the another producer company without Yes. voting powers? Yes, it can have, and even the societies which are the cooperative societies, they can be converted to the producer company. मैं आगे उसको अभी कवर करने वाला हूं आपके लिए। Okay sir. Now, जैसे आपकी कोई और क्वेश्चन हो मॉडरेटर? यस सर। या सो सर, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर कंपनी है, अभी आपने बताया कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों कही जाती है, तो सिमिलर क्वेश्चन एक अभी हमें मिस्टर जीएस गुजराल जी ने पूछा था कि व्हाई द प्रोड्यूसर कंपनीज आर रिटन एज लिमिटेड कंपनी वेयर एज द प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर एप्लीकेबल टू प्रोड्यूसर कंपनीज। या so it will be covered in the later slides. Can we take it then? Sure sir. Yeah, any other question? Yes sir, there is one more question from same Mr. Gujral. Yeah. That is there any exemptions from ROC compliances to the producer companies? No, whatever exemptions have been provided to a private limited company, with same condition will be applicable for the producer company. As such, for the producer company, some exemptions have been provided in terms of businesses which they carry in by the respective state government, right? But as far as compliances are concerned, the ROC compliances and all, they are as such applicable like a private limited company. Okay. Thank you, sir. Thank you. Any other question? No, sir. Perfect. So आप question लेती जाइएगा. I request you to take it, right? Now, earlier, if a person wants to incorporate a company, then it has to apply for the DIN number. Approval of the name, availability, separate form for first director, registered office, address, PAN, TAN. But when a single window form has been provided by the ROC, the same shall be applicable for the producer company also. So application of DIN up to 5 directors, and not 3 directors, 5 directors you can make. Application for availability of name. No need to file separate form for first director. You can just have it. No need to file separate form for address of registered office. No need to file separate form for PAN, TAN, GST for the registration under EPFO, that is called Provident Fund, ESI, professional tax, and no need to file
separate application with the bank for opening a bank account. So these all features which are available for other kind of companies on the MCA portal, this single window form shall be applicable for the producer company as well. So this is just for your knowledge. Why? Because whenever you go for the incorporation, there is no as such difference between the normal private company incorporation and the producer company incorporation, except some operational issues, which I will definitely discuss with you. Now, in case of incorporation of a company which are having more than 7 subscribers, the MOA and AO shall be filed with Spice Plus in the respective format, and this specific format has been provided in table A to J of schedule 1 without filing form INC 33. So whenever you have a change of memorandum article, you want to file it offline, you can use this INC form. So physical attachment of AO, MOA and AOA in form number INC 32 shall be made. So whenever you want to have a producer company memorandum article which is very specific, you need to file a separate form for the purpose of registration of MOA and AO. Now, in case of companies which are incorporated with effect from 26 January 2018 with a nominal capital of less than or equal to rupees 15 lakhs, or in respect of companies not having a share capital and whose number of members which are stated by the articles of association does not exceed 20, ROC fees on Spice Plus shall not be applicable. So this is as such applicable to the producer company as well. Now, importantly, the definitions under section 378A are important and need to be discussed with you. Why? Because until and unless you understand these definitions will clarify a lot of doubts of yours. Who can become the member, who is member, and for becoming a member and to continue as a member in the producer company, you need to be an active member. Now, what is active member? Active members means a member of a producer company who fulfill the quantum and period of patronage of the producer company as may be required by the articles. So whatever agri product is there you are dealing with, whatever agri allied product you are dealing with, if some sort of a quantum has been fixed by the articles of association, then one has to contribute to the common pooling and continuously you have to provide that. Then it is not so कि आप एक साल तो provide करें, दूसरे साल सो जाएं, तीसरे साल फिर provide करें, चौथे साल सो जाएं. You are not an active member. और अगर आप active member नहीं हैं तो आप continuing member नहीं हो सकते. तो producer company के अंदर active member की जो definition है वो बहुत important है. ये active member वो active member है जो quantum और period of patronage का मतलब contribution हो गया, एग्री कंट्रीब्यूशन हो गया, उसको आप आर्टिकल की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो भी आर्टिकल्स में डाला गया है क्वांटम को लेकर, टाइम को लेकर, वो आप पूरा कर रहे हैं. नाउ हु विल बी मेंबर? मेंबर मींस ए पर्सन और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, whether this is incorporated or not, admitted as a member of a producer company and who retains the qualifications necessary for continuance as such. इसका मतलब ये हुआ कि मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ कंडीशन को पूरा करने की जरूरत है. तो जब भी आप अपने किसी क्लाइंट से बात करें जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट को लेकर आता है प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में वो आ जाते हैं, तो आप उनको कहिए कि आपको एक्टिव मेंबर रहना पड़ेगा टू बी कॉल्ड एज मेंबर. नाउ जो प्राइमरी प्रोड्यूस है जिसमें आपकी कंपनी डील करेगी उसको आपको समझना है. वो और कौन कौन से प्रोड्यूस हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोड्यूसर कंपनी को डील करना है. इनको जरा आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइए. प्राइमरी प्रोड्यूस की डेफिनेशन को 378 जे में बहुत अच्छे से डाला गया है. इट सेज दैट प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स, सो एनी प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी का काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रीवेजिटेशन, बी रेजिंग, मधुमक्खी पालन,
and farming plantation products or from any other primary activity or service which promoters of that producer company in the interest of the farmers or consumers produce. तो ये produce of farmers primary produce कहलाएगा. Number 2, produce of persons who are engaged in handloom, handicraft and other cottage industries. तो देखिए केवल एग्रीकल्चर नहीं आ रहा, उसमें हैंडलूम भी आ गया, हैंडीक्राफ्ट्स भी आ गया और कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्राइमरी प्रोड्यूस में इनकॉर्पोरेट किया गया. एनी प्रोडक्ट which is resulting from any of the above activities including by products of such products. तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे आपको बाय प्रोडक्ट निकलेगा. डेयरी के काम में आपका गौमूत्र बहुत काम आता है, काउ डैंग बहुत काम आता है, जिसकी आप अगरबत्तियां धूम बत्तियां बनवाते हैं. काउ का जो यूरिन है उसको प्रोसेस करके और उसको आयुर्वेदा के अंदर कंज्यूम किया जाता है. दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो मेन प्रोडक्ट. उसको भी प्राइमरी प्रोड्यूस माना गया है. नाउ एनी प्रोडक्ट which is resulting from an ancillary activity that may assist or promote any of the aforesaid activity and which is very much ancillary there too. आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आप उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में किसी जगह पर जहां टमाटो बहुत ज्यादा होता है एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी में, जो कि सॉस टमाटो सॉस का उत्पादन करेगी, वो भी प्राइमरी प्रोड्यूस बन जाएगा. कोई भी एक्टिविटी which is intended to increase the production of anything referred to in this and which improve the quality thereof. एक प्राइमरी प्रोड्यूस जो कि रॉ सेंस में है, उसमें अगर आप कुछ भी अपना इंकॉर्पोरेट करते हैं प्रोसेस या प्रोसीजर और उससे वो एक नेक्स्ट लेवल का कंज्यूमर आइटम बनता है, तो जिसको कंटेंट को डाला गया है वो भी प्राइमरी प्रोड्यूस बन जाएगा. इस प्राइमरी प्रोड्यूस को जानने की क्यों जरूरत थी? बिकॉज यहां से मुझे जानना है कि 3 डेफिनेशंस मुझे आगे बढ़ने से पहले. प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर कंपनी क्या है फिर, और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस क्या है. प्रोड्यूसर वो है जो एक पर्सन है, और पर्सन चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई और प्रोड्यूसर कंपनी हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो. अमूल का एक दिमाग में एग्जांपल रखिएगा. अमूल इज ए very great example throughout the world which created a movement under societies, right? A society's movement. Now producer will mean a person who is engaged in any activity which is connected with or relatable to any primary produce. तो एक ऐसा बंदा जो कि चाहे इंडिविजुअल हो चाहे नॉन इंडिविजुअल हो, बट वो किसी ऐसी एक्टिविटी में कनेक्टेड हो which is relatable to any primary producer. और प्राइमरी प्रोड्यूस आपने अभी यहां देखा, तो इसमें से जो भी आपका प्रोड्यूस में कोई इंडिविजुअल डील कर रहा है कोई भी, तो वो प्रोड्यूसर कहलाएगा. समझ लीजिए. इसका मतलब जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करें उससे पूछें कि क्या आप प्राइमरी प्रोड्यूस में डील करते हैं, वो कहेगा यस, तो वो प्रोड्यूसर बन जाएगा. Now, what is producer company? Producer company will mean a body corporate having objects or activities which are specified in section 378B and which will be registered as a producer company under this act or under the Companies Act 1956. इस डेफिनेशन से जो कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो डिफरेंट है. कंपनी की डेफिनेशन ये कहती है कंपनी मीन्स ए कंपनी incorporated under this act, मतलब 2013 में जो बनी है, और any other previous law. But producer company की definition कहती है कि producer company means a producer company which is incorporated under this act or under the Companies Act 1956. वो Companies Act 1913 के बारे में बात नहीं करती. तो नॉर्मल कॉमर्शियल कंपनी 1913 की बनी हो सकती है ब्रिटिश टाइम की, बट प्रोड्यूसर कंपनी का तो कॉन्सेप्ट ही इंडिया में 2002 में आया, तो 1956 में बनी होगी. Now, third, the producer institution. Producer institution वो producer company होगी या institution होंगे which are having only producer or producers or producer company.
तो देखिए या तो प्रोड्यूसर्स होंगे या प्रोड्यूसर कंपनी होंगी। एज इट्स मेंबर, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह काम कर रहे हो, एंड दे मस्ट हैव एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रेफर टू इन सेक्शन 378B। 378B प्राइमरी प्रोड्यूस के बारे में बात करता है, which agree to make use of the service of the producer company or producer companies as provided in this articles। तो तीन टर्मिनोलॉजी आपने सीखी। पहले तो प्राइमरी प्रोड्यूस आपने सीखा, यहां पर ये प्राइमरी प्रोड्यूस एक बार आप देख लीजिए, एक बार जरा ध्यान से 1 मिनट होके पढ़ लीजिए। So before moving to the next concept, there are some queries if you Yeah. can take up. Sure. So the question, I'm taking the last question first. How we will verify in the later stage that whether the member of a company is active member or not, which is precondition of producer company. Yeah. So first of all, when I just go back, first of all, you have to be an active member as per the articles of association. If article of association has put some conditions with regard to contribution by the member to the pool, actually pooling of the resources, then that active member with regard to the quantum कितना देना है और कितने टाइम के लिए देना है, किस टाइम देना है, वो उसको एक्टिव बनाएगा। Active member will become a member because just to continue as a member you need to be active member। अब ये member प्राइमरी प्रोड्यूस में डील करेंगे। ये प्राइमरी प्रोड्यूस यहां पर आ गया, जो कि एंसिलरी से भी आ रहा है, कॉटेज से भी आ रहा है, बाय प्रोडक्ट से भी आ रहा है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से भी आ रहा है जो उस आइटम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। ये प्राइमरी प्रोड्यूस हो गया। अब इस प्राइमरी प्रोड्यूस में अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन डील कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर बन गया। प्रोड्यूसर कंपनी वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई जिसके ऑब्जेक्ट या जो एक्टिविटीज हैं दे आर लाइक ऑफ ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन भी प्रोड्यूसर कंपनी और प्रोड्यूसर्स को मिलाकर बने। तो इन कॉन्सेप्ट को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे हम प्रोड्यूसर कंपनी की कंसल्टिंग नहीं कर पाएंगे। नाउ आई होप कि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं साथ साथ, और आप अपने पास एक कॉपी और पेन भी रखे हुए हैं और अपने ये कॉन्सेप्ट्स को लिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि हु कैन फॉर्म ए प्रोड्यूसर कंपनी। जैसा मैंने सबसे पहले बताया, इसको या तो 10 या 10 से अधिक इंडिविजुअल्स जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स होंगे। तो सबसे पहले फिर मैंने बताया इसमें कोई भी आप नॉन प्रोड्यूसर नहीं लेंगे। अब या तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जाती हो एग्रीकल्चर की, या कोई और वो प्रूफ दे, चाहे वो ग्राम सभा का हो, ग्राम पंचायत का हो, कि वो एक प्रोड्यूसर है। उस प्रोड्यूसर को ये प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे। सो ये कौन मांग सकता है? ये आरओसी आपसे मांगता है प्रूफ कि प्रोड्यूसर है या नहीं है। कोई कॉमर्शियल बंदा तो नहीं आ रहा है इस बीच में। तो कोई टिपिकल बिजनेसमैन प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बना पाएगा, उसको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। अब दूसरा, 2 या 2 से अधिक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, और यहां पे पढ़ लिया था कि प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, दोबारा पढ़ लीजिए, लास्ट वाला देखिए जरा। प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन मींस अ प्रोड्यूसर कंपनी, इसका मतलब प्रोड्यूसर कंपनी दूसरी प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती है। एनी अदर इंस्टीट्यूशन हैविंग ओनली प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनीज एज ए मेंबर्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इसका मतलब कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है जो इसका मेंबर बन सकता है। तो प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन आपने यहां से सीखा, तो 2 या 2 से अधिक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन जब मिलेंगे तो प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। या कॉम्बिनेशन ऑफ 10 या 10 से ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, अगर ये दोनों मिलकर भी बनाना चाहें, ये 10 में से 8 तो इंडिविजुअल हो गए और 3 प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन हो गए, 11 लोगों ने मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी को बना दिया। If they are desirous of forming a producer company, they may form an incorporated company as a producer company under the Companies Act 1986 by your friends. Before going further, मैं चाहूंगा क्वेश्चन आप ले सकते हैं। Yes sir. So अभी हमने वो वाला क्वेश्चन तो डील कर लिया, एक्टिव मेंबर वाला। सेकंड क्वेश्चन ये है कि whether producer company can make purchases from non-member and then trade in goods. And also, can they operate cold storage or warehouse, which will provide service to the general public also? See, the activities which dealt with the primary produce, like for example, आपने बात की स्टोरेज की, तो कोल्ड स्टोरेज का एक मालिक है जो कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रखता है और वो एक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। एक किसी प्रोड्यूसर कंपनी ने वो बनाया है या किसी प्रोड्यूसर ने बनाया है, या मैं कहता हूं नॉन प्रोड्यूसर ने बनाया है,
तो नॉन प्रोड्यूसर ने जैसे ही ऐसे इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया which preserves actually agriculture products as a cold storage, as a warehouse, they also indirectly connected with your primary produce, therefore they are called as producers. Similar question is that is rice mill or flour mill or seed grading plant can be covered under producer definition? They are, you know, if they are working for the benefit of their members, then only they can do it. Actually, they have to come under the ambit of the producer company. And if they want to, like for example, take a live example, like for India Gate चावल आप बात करते हैं या दावत चावल की बात करते हैं, तो क्या ये कंपनियां प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती हैं? ये बना सकती हैं प्रोड्यूसर कंपनियां, लेकिन क्या उसमें प्रोड्यूसर इसके प्रमोटर हो सकते हैं? द आंसर इज स्ट्रेट नो, क्रॉस कर दीजिए। लेकिन अगर ये चाहेंगी कि ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इकट्ठा करें और उसकी प्रोड्यूसर कंपनी बना लें, तो ये उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी फैक्ट्री उठा रही है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट मेंबर नहीं बन सकते। उसके स्टेक होल्डर बन सकते हैं बट मेंबर नहीं बन सकते। Next question is, what is off farmers producer company? Whether same rules apply as of producer company? Absolutely. If they are governed under Chapter 21A under the Companies Act 2013, that will be producer company. Okay. And last question. Yes. Sorry. एक क्वेरी है, मैं मुदित अग्रवाल बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। मुदित, मैं एक क्वेरी मुझे पूछनी है। जो प्रोड्यूसर है, या कई फार्मर होते हैं जिनके पास में अपनी लैंड नहीं होती, वो बटाई पे लैंड ऑक्यूपाई करते हैं और खेती करते हैं। Can they form producer company? Can to they be own a member of- land, Mudit, to own a land is not a precondition for the producer company. Okay. Right? आपने कहीं नहीं देखी वो कंडीशन, और वो Okay. कंडीशन हो भी नहीं सकती, बिकॉज 70% जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो उसमें से मेजॉरिटी सेक्शंस के पास तो लैंड ही नहीं है। Okay. लेकिन अगर उसमें से 100 लोग मिलके एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहें, आपका शहर दूर नहीं है, आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। यूपी में कहां से? पीलीभीत। पीलीभीत। यहाँ पर एक जगह है बुलंदशहर। राइट। बुलंदशहर में यहाँ पर काफी लोगों ने मिलके, जिनके पास लैंड थी और जिनके पास लैंड नहीं थी, जो कि मजदूर थे, उन्होंने मिलके अभी रिसेंटली 2 साल पहले कैरेट्स का काम किया, एक क्लस्टर बनाया। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे जाके। ओके। और 100 मेंबर्स ने मिलकर वो कंपनी बनाई। आज उसमें करीब 3,500 मेंबर्स हैं। उसमें से मेजॉरिटी मेंबर्स वो प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है, बट वो प्रोड्यूसर्स हैं। Why? Because they deal in produce. They are directly connected. बट जब मैं दावत या इंडिया गेट चावल के ऑनर्स की बात करता हूं, उनके शेयर होल्डर की बात करता हूं, वो प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते। राइट। द कमर्शियल वेंचरिस्ट एक्चुअली, राइट? बड़ा टिपिकल है, समझना। मैं तभी कहता हूं कि जब हम टेबल पे अपने क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो आपके सामने नॉन प्रोड्यूसर्स आके बैठ सकते हैं जो कहेंगे हमारे लिए प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे जानना है, ये आपको यहां से आज समझ में आ रहा है। ओके। या कोई और? Yes, sir. So an operational question. Please also explain about PF registration made compulsory while incorporation of company. What if login ID are received on mail is not activated? Is it compulsory to file PF returns? What if company do not have the PF number in initial period? See, unfortunately, PF is registration is there actually, and whenever initially this is not applicable on you, you can also go for surrender with the concerned PF department, or you may file the nil returns actually till the time your number of people reaches to the basic requirement. Any other question? Yes, sir. The last question. Yeah. How a member share can be bought by the major member? आगे आ रहा है वो, आगे आ रहा है. That is why. So how can we inspect the producer company data of bid? आगे उसको कवर करते हैं। चलिए, अब आपके सामने एक दूसरी परिस्थिति आएगी जो मेरे सामने 2002 में आई थी। जब मैं प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बनाने 2002 में गया तो उस टाइम गूगल दादा के पास भी ऑब्जेक्ट नहीं थे प्रोड्यूसर कंपनी के, क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आया। तो हमने खुद पढ़ के उन ऑब्जेक्ट्स को बनाया। आज तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, हर जगह आपको प्रोड्यूसर कंपनी के स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, बट उन ऑब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक एक करके इन 6 स्लाइड्स को पढ़िए मेरे साथ। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी: प्रोडक्शन,
Harvesting, procurement, grading, pooling, handling, marketing, selling. Export of primary produce. अब मार्केटिंग सेलिंग में जो मेरा अभी का एग्जांपल बताया हुआ है, दावत या इंडिया गेट का चावल, अगर 100 प्रोड्यूसर्स ने मिलकर अपने खेतों में मजदूरों के साथ मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और अपने प्रोडक्ट को वो मार्केट करना चाहते हैं, दावत को बेचना चाहते हैं, इंडिया गेट को बेचना चाहते हैं, now comes to the picture India Gate, but not as a producer, as a acquirer. प्रोड्यूसर कंपनी को भी तो अपना प्रोडक्ट बेचना है और वो यहां ऐसे बेच रही है. Now एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस. तो पहली कंडीशन, जो पहला ए क्लॉज आप देख रहे हैं, पहली स्लाइड देख रहे हैं, इसमें ये सारा कुछ प्राइमरी प्रोड्यूस के बारे में हो रहा है. ये प्राइमरी प्रोड्यूस मेंबर्स का है और मेंबर का आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूस में डील करता है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट. आप कोई फ्रूट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में वो अलाउड है, आप उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, पूलिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, यू आर ए प्रोड्यूसर. Processing including preserving, drying, distilling, brewing, venting, canning, जूस के प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग आ गई उसमें प्रोड्यूस की मेंबर्स की. तो जो भी उसके मेंबर्स बना रहे हैं, तो देखिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आप ये चीज जरा समझ लें. ऐसा नहीं है कि एक जूस की फैक्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर बैठ जाएगी. इसमें क्या है? पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स. इसका मतलब मेंबर्स ने ही अपनी अगर किसी फैक्ट्री को खोल लिया है प्रीमाइसेस के अंदर, कोल्ड स्टोरेज को खोल लिया है, प्रोसेसिंग यूनिट बना ली है, वो भी प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर करेगी. सी मैन्युफैक्चरिंग, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स मेनली टू इट्स मेंबर्स. मैं एक प्रोड्यूसर कंपनी हूं जो कि एग्री मशीनरीज में काम करता हूं. मैं अपने केवल मेंबर्स के लिए टेक्नोलॉजी बनाता हूं, मशीनरी बनाता हूं, इक्विपमेंट्स बनाता हूं. I am a producer company. I can be incorporated as a producer company. I am providing education on the mutual assistance principles to its members and others. ये one of the objects होता है. Rendering technical services, consulting services, training, research, development, and all other activities for the promotion of interests of its members. ये एक object हो सकता है. इस object से जुड़ा हुआ मैं आपको एक फीचर समझाता हूँ. पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ही हमारे बड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां से ये सुन रहे हैं. पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े सारे इंसेंटिव्स ग्रीन पार्क लगाने के लिए दिए, पंजाब में ग्रीन शेल्टर्स बनाने के लिए दिए, मशरूम की खेती बनाने के लिए दिया, इक्विपमेंट्स रिसर्च के अंदर दिया. मैंने खुद अपनी आंखों से वाटर सेंसर्स देखे हैं. आप जब खेतों में क्यारीज देखते हैं, जब उसमें आप पानी डालते हैं, पानी छोड़ते हैं, तो कितना पानी छोड़ना है और कितना नहीं छोड़ना है ये किसान के अंदाजे पर होता है. लेकिन अब इसके ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि पूरी पाइपिंग सिस्टम है सेंसर्स की, पानी फ्लो है उसमें, अब वो सॉइल को टेस्ट करते रहती है मशीन, और जैसी पानी की जरूरत होती है, जितना पानी की जरूरत है उतना पानी रिलीज होता है. ये आपकी मशीनरी आती है, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं. तो ये पंजाब गवर्नमेंट इसमें सब्सिडीज भी देती है. कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत आगे आ गई है इसमें, केरला भी आ रहा था. जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, देयर यूज, कंजर्वेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेबल टू द प्राइमरी प्रोड्यूस. ये आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स. नाउ इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्रमोटिंग टेक्निकलिटीज एंड टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, welfare measures or facilities for the benefit of members, any other activity ancillary or incidental to any of the activities which are referred thereunder, which may promote principles of mutuality and mutual assistance amongst the members if any other manner. तो member का मतलब है member of the producer company. Financing of procurement, processing, marketing or other activities which are specified in these clauses and which extend credit facilities or other financial services to its members, they also become the main objects of the producer company. So every producer company shall deal primarily with the produce of its active members for carrying out any of its objectives specified in that section. ये दो लाइनें आपको क्लियर कर देंगी कि किस तरह से जो दावत या इंडिया गेट चावल की फैक्ट्री है उसके ऑनर्स हैं वो प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बना पाएंगे, बिकॉज प्रोड्यूसर कंपनी के जो डील हो रही है वो प्राइमरीली प्रोड्यूस में हो रही है, एक्टिव मेंबर्स में हो रही है, एंड फॉर कैरिंग आउट एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स हो रही है व्हिच इज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी
shall be made. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मॉडरेटर आप ले सकते हैं, जो भी 1-2 क्वेश्चंस हो. Yes, sir. So incorporation से related है कि sir, but first 10 members need to file for ये our मैं land. अभी आगे ले रहा हूँ, इसी में आगे लूंगा मैं. Yes, sir. While so ROC raised a query in one of the applications of this question. The person was raised the question to provide land documents for incorporating the producer companies. So as you said, you will take up this question. Yeah. So how it help to self groups whether profits are distributed among members or not. ये भी आगे आ रहा है. ठीक है sir. Yes sir, we can proceed. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी ऑडियंस मुझसे 2 कदम आगे चल रही है. सो इट इज रियली अप्रिशिएबल बिकॉज आपका एक थॉट प्रोसेस मुझे बनाने की जरूरत होती है. देखिए, प्रोड्यूसर कंपनी को डील करते हुए मुझे भी 20 साल हो गए हैं, बट जब भी मैं नई कंपनी बनाने जाता हूं मुझे दोबारा लॉ पढ़ना पड़ता है, बिकॉज कोई चेंज तो नहीं आ गया, कोई मैं गलती तो नहीं कर बैठूंगा, मैं डिस्कशन करता हूं, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका एक थॉट प्रोसेस ओपन हो जाए अपने क्लाइंट के लिए, and you will find it very effective, my dear friends. Now there is a pre-incorporation checklist. वो क्या है? Any 10 or more producers, individuals, producers मैं आपको समझा चुका हूँ, producer कौन होंगे. So any 10 or more producers, वो individuals can join together to form a producer company, but there is no upper limit on the number of members. Any 2 or more producer institution can form a producer company, or a minimum capital of 5 lakh is required to incorporate a producer company, which is now exempted. क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए exempt है तो इसके लिए भी exempt हो गया. There should be minimum 5 directors, maximum 15 directors in a producer company. This producer company can never be converted into a public company. However, company का नाम क्या था? Producer Company Limited. It can be converted into a multi-state cooperative society. प्रोड्यूसर कंपनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, लेकिन कोई और प्राइवेट कंपनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती. जो प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है वो ही केवल वापस स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, बट नॉर्मल प्राइवेट कंपनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती. तो ये याद रखना है आपने. इट विल बी इन द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी. ये मैं आपको बता चुका हूं. इफ यू आर डिजायरिंग any 10 individual, any 2 institution, or a combination of 10, if they are desirous to form, they can form this producer company. Now, the second stage comes, which is the registration process. Now, as far as registration is concerned, this is more or less same as the private company, except you have to get a lot of documents from these primary producers. और इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो सकती है उनके डॉक्यूमेंट्स को. अब तो आधार कार्ड बहुत अच्छा आ गया है कि आधार कार्ड सबके बहुत अच्छे से यूज हो जाते हैं. पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी, जब आधार नहीं होता था हमें उनके इलेक्शन आईडी कार्ड लेने होते थे. पैन कार्ड में कुछ नाम होता था, इलेक्शन आईडी में कुछ नाम होता था. उसमें एफिडेविट्स हम बना के सबमिट करते थे आरओसी में कि ये दोनों लोग एक ही हैं, और आरओसी उसको एक्सेप्ट करता था. जहां पर आपके मेंबर्स 10 से ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल 100 मेंबर्स कंपनी बनाना चाहते हैं, वहां पर मैं ये एडवाइस करता हूं कि सिलेक्टेड 10 या 15 लोग मिलकर कंपनी बनाएं और बाकी लोग बाद में एज ए मेंबर कंपनी के अंदर आ जाएं. तो ये आप ध्यान रख सकते हैं. सो व्हेन रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ द ई फॉर्म्स, फाइलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, justifying the definition of producer, and justifying the article and memorandum association of the company, then registrar of companies shall issue the certificate of incorporation and it will be the evidence. इस स्टेज पर आपको 2-3 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एक तो नंबर पे आने वाली हैं, और दूसरी जो स्टेक होल्डर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ डील करने में आने वाली है, जो कि आपके एक इंडिविजुअल अप्रोच होगी, आप उसके साथ कैसे डील करेंगे. आरओसी आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला है कि अगर दीपक शर्मा सामने प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो उसका आप बैकअप सपोर्ट क्या देंगे. मैं एक तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरी है तो दे सकता हूं, या मैं एक ग्राम सभा का, ग्राम पंच का, या कोई लोकल अथॉरिटी है उसका एक सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि रामलाल सन ऑफ मिस्टर भगवान लाल, रेजिडेंट ऑफ दिस विलेज, इज द फार्मर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड इन दिस एरिया. ये सफिश होगा उसको प्रोड्यूसर बनाने, प्रोड्यूसर प्रूफ करने के लिए. नाउ प्रोड्यूसर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सेम है. मेंबर्स के लिए डिन एंड डीएससी की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे,
ऑनलाइन आप जो फॉर्म स्पाइस प्लस आया है और अब तो प्रोफेशनल टैक्सेस भी आ गया है जून से, उसके साथ आप नेम अप्रूवल में जाएंगे। नेम अप्रूवल में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, नाम आप कोई भी रखें, आपको नेम एम्बलम में जाना है, उसका प्रीफिक्स आपका मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी से। और कंपनी के लास्ट में आपने, हर कंपनी के लास्ट में 3 वर्ड्स को यूज करना है, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो कोई भी हो काम नाम कंपनी का, लास्ट में 3 नाम आने ही चाहिए, तो प्रोड्यूसर कंपनी का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नाउ लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको एक बार हम समझ लें प्रोड्यूसर कंपनी में बांधते हुए। कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी है, अगर वो फॉर्म होती है, it shall have the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any unpaid on the shares respectively held by them and be termed as a company limited by shares. नॉर्मल कंपनी की तरह जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, इस प्रोड्यूसर कंपनी की लायबिलिटी को भी, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी को भी आप लिमिटेड कर देते हैं। एक्सपेंसेस, द प्रोड्यूसर कंपनी में रियम्बर्स टू इट्स प्रमोटर्स all other direct costs associated with the promotion and registration process of the company, चाहे मेरी कंसल्टिंग फीस हो, आरओसी की फीस हो, वो नॉर्मल कंपनी की तरह प्रोड्यूसर कंपनी रियम्बर्स करेगी। रजिस्ट्रेशन की फीस, लीगल फीस, प्रिंटिंग, आर्टिकल, कोई और पेमेंट किया है, जो भी अप्रूवल उसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आपको 90 दिन के अंदर करनी होगी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन the producer company shall become a body corporate. अब देखिए बॉडी कॉर्पोरेट आप वर्ड कहां यूज करते हैं, फॉरेन कंपनी के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ए कंपनी, सो कंपनी, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज ए कंपनी बट एवरी कंपनी इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए जब आप स्टूडेंट थे। सो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है एज इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये यहां से आया डेफिनेशन से, टू विच द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर 21A अप्लाई। Now without however any limit to the number of members, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो 200 मेंबर्स की लिमिट है, बट प्रिज्यूमेबली दैट दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, ये लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट लगते हुए भी, प्राइवेट कंपनी मानते हुए भी, बाद में प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगाते हुए भी मैक्सिमम मेंबरशिप का कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। एंड दिस प्रोड्यूसर कंपनी शैल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांस whatsoever become or be deemed to be a public company under this act. तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपने समझे प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। नाउ इसकी मेंबरशिप एंड वोटिंग राइट्स कैसे रखे गए, जो मेरे अभी एक मित्र ने भी पूछा था क्वेश्चन, तो 378D उसको बताता है, जहां पर मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ ओनली सोली इंडिविजुअल मेंबर्स। यहां ये समझना है आपने कि इसकी वोटिंग कैसे आ रही। द वोटिंग राइट शेल बी बेस्ड ऑन ए सिंगल वोट for every member irrespective of his shareholding or patronage of the producer company। अब मुझे आपको पैट्रोनेज भी समझाना पड़ेगा कि पैट्रोनेज क्या होता है, तो उसको भी दिमाग में रखिए, इसको भी आप पढ़ेंगे। पहले आप ये समझ रहे हैं कि जहां पर केवल इंडिविजुअल मेंबर्स हैं प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर, तो उसका जो वोटिंग सिस्टम है वो 1 वोट 1 इंडिविजुअल होगा। Where the membership consists of producer institutions only, then the voting rights of such producer institution shall be determined on the basis of their participation in the business of the producer company in the previous year as may be specified by the articles. So articles of association बताएंगे कि जो प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, अगर सपोज 2 या 2 से अधिक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, तो उनकी जो वोटिंग राइट्स होगी वो उनके प्रीवियस ईयर के कंट्रीब्यूशन जो कि आर्टिकल्स में लिखा होगा उसके बेस पर आप डिटरमिन करेंगे हर साल। नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है, द वोटिंग राइट्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर होल्डिंग बाय सच प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के वोटिंग के लिए 2 पैरामीटर हो गए। पहला, अगर प्रीवियस ईयर नहीं है, अभी नई नई कंपनी बनी है, तो बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग। अगर प्रीवियस ईयर है, कंपनी पुरानी हो गई है, तो बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन टर्नओवर व्हिच हैज बीन डिफाइंड इन द आर्टिकल्स। नाउ where the membership consists of individual and producer institution, दोनों ही है, तो क्या करोगे, the voting right shall be computed on the basis of single vote for every member। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन को भी और इंडिविजुअल को भी, प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव को भी और इंडिविजुअल को भी आप 1 वोट 1 मेंबरशिप देंगे। नाउ
Before going to articles, कोई भी question, moderator, please? Yes, sir. So, is there any special clause in CARO of producer company, or we have to mention in any report regarding producer company? CARO में या किसी और रिपोर्ट में प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने के लिए? कारो के अंदर स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर कंपनी का कोई नोटिंग पॉइंट नहीं है। आप इसको नोट्स वो अकाउंट में डालेंगे पहले, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब नेचर बताते हैं तो नेचर आप जानेंगे, और ऑडिट करते समय आपका एक व्यू और एक्सपेंड हो जाता है कि जो मेंबरशिप की कंडीशंस को चेक कर रहा है कि क्या वो रियल में प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनकॉर्पोरेशन जब होता है और नई कंपनी का पहला ऑडिट आप कर रहे हैं, तो आपका ये ऑडिट ड्यूटी बनती है कि आप उस प्रोसेस को ऑडिट करें जिसके द्वारा कंपनी प्रोड्यूसर इनकॉर्पोरेट हुई है। तो चाहे उसकी मेंबरशिप की चेकिंग करनी हो या उसके प्रोसेस को चेक करना हो, उसके मेमोरेंडम आर्टिकल से वो आपके व्यू में आता है, रिव्यू में आता है। बट एज सच कारो के अंदर कोई स्पेसिफिक पैरामीटर या क्लॉज नहीं है। Okay, thank you, sir. There are no more questions as of now. नाउ सेक्शन 378D जो कि आर्टिकल्स के बारे में बता रहा है, आर्टिकल्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर कंपनी में प्रोवाइड फॉर द कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच ए मेंबर में कंटिन्यू टू रिटेन हिज मेंबरशिप। देखिए शुरू में मैंने बताया था एक एक्टिव मेंबर वो होगा जो क्वांटम को पूरा करता है, सप्लाई करता है। जैसे मैं डेयरी उद्योग लगा रखा है मैंने, मेरे पास 100 किसान आते हैं, किसी के पास 4 काउज हैं, किसी के पास 2 काउज हैं, अब किसी के पास कुछ और है। अब ये कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने मिनिमम रख दिया कि भाई 5 लीटर तो लाना ही लाना है। तो क्या मैं 5 लीटर्स ला रहा हूं डेली का, कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? नहीं कर रहा। अगर वो मैं कंटिन्यूअस पीरियड में नहीं कर रहा, जो कि आर्टिकल्स में पीरियड लिखा हुआ है, मैं मेंबर शायद डिबार हो जाऊंगा। इसलिए देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स में इसको डालना जरूरी होता है, और यही आपको वोटिंग राइट्स का एक राइट भी देता है। नाउ जो कुछ भी यहाँ लिखा हो, कोई भी प्रोड्यूसर कंपनी अगर आर्टिकल्स उसको ऑथराइज कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वोटिंग राइट्स को अपने एक्टिव मेंबर्स को, अगर वो एक्टिव मेंबर इज नो मोर ए एक्टिव मेंबर, या अगर एक्टिव मेंबर है भी और उसने अगर कोई मिसकंडक्ट किया है, तो उसके उस वोटिंग राइट्स को आर्टिकल्स डिफाइन कर सकते हैं कि किस कंडीशन के अंदर एक्टिव मेंबर की डेफिनेशन को भी अट्रैक्ट करके उसको मेंबरशिप के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो स्पेशल हो या ऑर्डिनरी हो इन जनरल मीटिंग। नाउ नो पर्सन हु हैज एनी बिजनेस इंटरेस्ट which is in conflict with business of the producer company shall become a member of that company। देखिए सेक्शन 166 जरा पढ़िएगा, नॉर्मल है वो बाकी कंपनीज के लिए, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एक मेंबर हैं तो दूसरी मेंबर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके 2 डिफरेंट बिजनेसेस हैं, आप डेयरी में भी काम करते हैं और आप बी फार्मिंग में भी काम करते हैं, तो दोनों के लिए आप अलग अलग प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। A member who acquires any business interest which is in conflict with the business of the producer company, it shall cease to be a member of that company and he shall be removed as a member in accordance with the articles। तो ये conditions कहाँ आ रही हैं? Articles के अंदर आ रही हैं, और आपको ध्यान रखना है। Now ये कुछ benefits हैं जो members को दिए गए हैं, subject to the provisions which are entered in the articles. Every member shall initially receive only value for the produce of products pooled and supplied as the board of producer company may determine, and the withheld price, अब आपको मुझे withheld price भी बताना पड़ेगा, patronage के साथ साथ withheld price, the withheld price may be disbursed later in cash। अब सपोज मैंने पूलिंग करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, मैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को डील कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे प्रोड्यूसर उसको कंट्रीब्यूट पूल करते हैं। लाइक मैं डेयरी का ही एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे को डेयरी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और मैं एक नॉर्मल रेट मैं अपने किसानों को 25 रुपए लीटर का दे रहा हूं मिल्क का, लेकिन मैं मार्केट में 35 रुपए लीटर बेच रहा हूं थोक में, तो मैं 10 रुपए लीटर बचा रहा हूं एज ए प्रोड्यूसर कंपनी। उसमें से 5 रुपए का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रही है, 5 रुपए मुझे सेविंग प्रॉफिट पड़ रहा है, तो 5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो एक तरह से विदल्ड प्राइस हो गया, जिसको बाद में मैं पैट्रोनेज बोनस की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, चाहे वो बोनस शेयर या मैं कैश काइंड में अपने प्रोड्यूसर्स को वापस लौटा सकता हूं। एवरी मेंबर शैल ऑन द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड
receive only a limited return. हर किसी को एक limited return मिलेगी, provided that every such member may be allotted bonus shares in accordance with the provisions. Now, कोई भी अगर surplus होगा, remaining after making provisions for payment of limited return and reserves which are referred, it may be disbursed as patronage bonus. तो जो भी एडिशन बचा उसको पैट्रोनेज बोनस की तरह, पैट्रोनेज होता है लॉयल्टी कि आप हमसे जुड़े रहे, आपसे हमने कमाया प्रोड्यूसर कंपनी को, आप ही को वापस किया जाता है। और क्योंकि ये कोऑपरेटिव अमंग द कोऑपरेटिव्स है, इसलिए पैट्रोनेज बोनस। नाउ मेंबर्स को ये बांटा जाएगा इन प्रोपोर्शन टू देयर पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। किसी ने पिछले महीने 300 लीटर का मिल्क उत्पादन किया, किसी ने 10 लीटर का किया, उसको उसके अकॉर्डिंगली दे दिया जाएगा। नाउ कैश में दिया जाएगा या अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे या बोथ में, दोनों को दिया जाएगा, जो भी मेंबर्स अपनी जनरल मीटिंग में डिसाइड करें। नाउ ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी को आप दोबारा देखें तो नेम, स्टेट, मेन ऑब्जेक्ट जो मैं कवर कर चुका हूं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस हु हैव सब्सक्राइब्ड, अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंड नंबर ऑफ शेयर्स each subscriber who is taking care of the share capital, and that in the case of objects of the producer company that are not confined to one state, the states to whose territories the objects extend, that can be given in the articles of association, memorandum of association. So this jurisdiction may also be defined in the memorandum of association. My dear friends, RTO association जो मैंने आपको बताया, it shall be presented for registration to the registrar for at the time of registration of a company. Memorandum of the producer company, articles duly signed by the subscriber to the memorandum, and then article shall contain these following mutual assistance principles. इसको जानना बहुत जरूरी है आपको। Membership कैसे होगी? It shall be voluntarily available to all. आप restrict नहीं कर सकते, right? Eligible person कौन होंगे? Who can participate or avail the facilities or services of the producer company, and they are willing to accept the dues of membership. Each member shall have a only single voting rights spectrum of the shareholding. The producer company shall be administered by the board of directors, who will consist of persons who are elected or appointed as directors in the manner consistent with the provisions of the chapter, and the board shall be accountable to the members. Memorandum के अंदर particulars on limited return on the share capital डाल देंगे आप memorandum articles के अंदर, specifically in articles, the surplus arising out of the operations of the producer company shall be distributed in an equitable manner. Provision for education of members, training of members. Producer company shall actively cooperate with other producer company also. So clusters बनते हैं तो एक producer company दूसरी producer company को help करेगी। मैं produce बना रहा हूँ, produce फिल्टर कर रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट पर ले जा रहा हूँ, और आप एक कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो हम दोनों मिलके क्यों ना काम करें? दैट इज देयर। नाउ कुछ अदर द क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, एक कुछ भी डाल सकते हैं। एक्टिव मेंबर्स के अलावा आप कुछ और डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं आप। द कंडीशन फॉर कंटिन्यूएंस और कैंसिलेशन ऑफ द मेंबरशिप एंड टर्म्स ऑफ द कंडीशंस, क्या मैनर होगी जिसमें आप पैट्रोनेज बोनस और वोटिंग राइट को डिटरमाइन करेंगे, राइट? इलेक्शन कैसे होगा चेयरमैन का, मीटिंग्स कैसे होंगी, वोटिंग राइट्स कैसे होंगे, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांस हैं जिसमें विदहेल्ड प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, रिकमेंड और मेंबर्स उसको फाइनलाइज कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मेमोरेंडम आर्टिकल बनाते समय आपको ध्यान में रखने, माय डियर फ्रेंड्स। नाउ ये बहुत सारे जो मैनर्स हैं इसमें, जैसे पहली मैनर आप देखें, मैनर ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पैट्रोनेज बोनस इन कैश और बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बोथ, या कंट्रीब्यूशन टू बी शेयर्ड एंड रिलेटेड मैटर्स, कोई भी मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, basis of manner of allotment of equity shares, basis of manner of distribution deposit of funds, or any other provision which a member has to follow. तो ये एक सारे के सारे पार्ट है हमारे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। नाउ आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं 370H में, जैसे आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंज करते हैं रियल टर्म में कंपनी से 2013 में फॉर मेन कमर्शियल कंपनीज, प्राइवेट या पब्लिक को, उसी तरह से प्रोड्यूसर कंपनी का भी आप चेंज कर सकते हैं। उसका मोड क्या होगा? But producer company shall not alter the conditions contained in its memorandum except in the cases by the mode and to the extent for which
express provision is made under provision 378 Act. Producer company may by special resolution not inconsistent with this section may modify the objects. तो special resolution की जरूरत पड़ेगी. कॉपी आप रजिस्ट्रार को भेजेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा और सर्टिफाइड कॉपी आपको प्रोवाइड कर देगा. जो भी अल्टरेशन अगर मेमोरेंडम में हो रहा है with regard to change of the place of registered office from one state to another, वो भी will not take place unless it is approved by the central government, जो रीजन डायरेक्टर की तरफ पावर है. तो ये जो आप प्रोविजन देख रहे हैं, ये प्रोविजन मोर और लेस सेम कमर्शियल कंपनी जो अदर कमर्शियल कंपनीज ऑपरेट होती हैं उसी की तरह काम करता है ये. नाउ अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट होगा आर्टिकल्स के अंदर, इट शैल बी प्रपोज्ड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द इलेक्टेड डायरेक्टर्स. तो सबसे पहले जैसे डायरेक्टर्स में नॉर्मल कंपनीज में कोई ऐसा कोरम की बात नहीं कही है, बस प्रोड्यूसर कंपनी में 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे पहले आर्टिकल चेंज में. उसके बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी विल अडॉप्ट बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. और सारे अमेंडमेंट्स की जो कॉपी होगी आर्टिकल मेमोरेंडम की वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आप फाइल करेंगे. अभी तक कोई और क्वेश्चन? Yes, sir. Yeah. So first AGM of a producer company is to be held within 90 days. So how will we close the books of accounts within 90 days, whereas normal closing is on 31st of March? That AGM is not purported for adoption of financial statement. 90 दिन का समय आपको दिया गया है, इसका मतलब 3 महीना. अगला फाइनेंशियल ईयर आपका 12 महीने में आ जाएगा. 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में 15 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता. तभी ये फर्स्ट AGM केवल रखी गई है मेंबरशिप को अडॉप्ट करने के लिए, मेमोरेंडम आर्टिकल्स को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स कोई बिजनेसमैन नहीं है, टिपिकल बिजनेसमैन नहीं है. उनके साथ आर्टिकल्स मेमोरेंडम को डिस्कस करना, उनको एजुकेट करना, बिजनेस समझाना उनको, ये 90 दिन के अंदर होना चाहिए. इसलिए मेंबर्स की मीटिंग को बुलाया जाना अनिवार्य 90 दिन में रखा गया है. तो दोबारा से बता दूं, ये अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं है. जी सर. So next question is, what is the difference between producer cooperative societies and producer company? Producer company which is incorporated under the Producer Companies Act, and cooperative societies which are constituted under the respective state laws of Cooperative Societies Act. So is there any special benefit to producer company in comparison to producer cooperative societies? To give corporate culture, आपको याद होगा इंडिविजुअल को कॉर्पोरेट कल्चर देने के लिए ओपीसी आया, पार्टनरशिप को कॉर्पोरेट कल्चर देने के लिए एलएलपी आया. इसी तरह से एग्रीकल्चर कंपनी को एक अलग सेगमेंट देने के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर देने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट आया. जो आपका कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेटिव मूवमेंट का, वो अनरेगुलेटेड है, वो रेगुलेटेड नहीं था. गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं होता था, राइट. तो उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी हैं, आप अंडर द कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स, आपको सब्सिडीज दी जा सकती है. जी. So next एक बहुत peculiar question है, how can a beekeeper prove that it comes from under the category of producer? What would be the document to prove it? देखिए उसके पास केज बॉक्स होते हैं, बी बॉक्सेस होते हैं, राइट. उसके बाद बी बॉक्सेस होते हैं और वो खेती कर रहा होता है, वो अपना हनी बेच रहा होता है, तो वो कुछ ना कुछ प्रूफ देगा, और जो प्रूफ नहीं दे पा रहे उनका एफिडेविट फाइल कराया जाता है. Okay. And why Tata Chemicals formed hundreds of producer companies? What is the benefit of forming producer company? This is a general. Tata Chemicals and ITC related companies which are dealing in agriculture products. So for the purpose of benefit of the larger stakeholders, they club and they constitute the interested groups, and then they corporatize so that the system can be smoothened, operationalized, and in a most effective manner, their members can become negotiator with the other entities outside this commercial world. अगर 100 प्रोड्यूसर मिलके कंपनियां, सपोज मैं बुलंदशहर का एक एग्जांपल ले रहा था, जो कि कैरेट प्रोड्यूस करते हैं, गाजर उगाते हैं, तो एक किसान और 100 प्रोड्यूसर कंपनी जिसमें कि 10,000 किसान है, क्या फर्क होगा? 10,000 किसान जाके स्पेंसर्स, बिग बाजार और बाकी बड़े बड़े मार्केट से निगोशिएट कर सकता है. तो ये स्ट्रेंथनिंग देने की बात है मार्केट को बेनिफिट के लिए. तो टाटा फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल दीज स्टेक होल्डर्स, they were taking it as a social obligation.
So whether the first AGM within 90 days is to be filed with the ROC? The return has to be filed, but return is not in AOC 4 or MGD 7. This is in MGD 40. Thank you, sir. अभी के लिए तो यही वाले questions थे. Thank you so much. Yes. So ये कुछ options दिए गए हैं interstate cooperative societies के लिए to become producer companies कि कौन बन सकती हैं. तो interstate cooperative society जो हैं वो producer company बन सकती हैं 378C के provisions को opt करके. ये state cooperative societies हैं with objects not confined to one state. They may make an application to the registrar for registration as producer company under this chapter. Copy of the special resolution of not less than 2/3 of the total members of the interstate cooperative societies for its incorporation as a producer company under this act shall be made before the ROC. A statement which is showing name and addresses of the occupation of the directors and the chief executive, if any, by whatever name called, of such cooperative and list of members of such interstate cooperative societies. It shall be provided. C. Statement which will indicate that the interstate cooperative society is engaged in any one or more of the objects which are specified in section 378 related to producer. A declaration by 2 or more directors of the interstate cooperative society certifying that particulars given in clause A to C are correct. So ये जब बन जाएगी, जब interstate cooperative societies को producer company में convert किया जाएगा, तो words producer company limited shall be inserted with the name of that cooperative societies. On compliance with the requirement of this section, the ROC shall certify and it shall issue the certificate. Cooperative society which is formed by the producers or any federation or union of cooperative societies or producers or cooperative producers which is registered under any law as of now is and which has extended its objects outside the state directly or indirectly, maybe in a state or union territories, then it can apply for getting its registration as a producer company. The interstate cooperative society shall also, after the registration under this section, stand transformed into producer company. Therefore, it shall be governed by the provisions of the Companies Act by this chapter, and anything which is contained in any other law for the time being shall not be affecting the right and obligation. Now, which is very important concept, upon registration, upon conversion of the cooperative society into producer company, the registrar of companies who register the company shall forthwith intimate the registrar of cooperative with whom the erstwhile interstate cooperative society were earlier registered for deletion of the society from its register. तो ये members का obligation ना होके registrar of companies का obligation है कि जहां पर cooperative society registered थी उस societies registrar को वो लिखे कि ये registrar अपने यहाँ से cooperative society का नाम delete करे. क्यों? क्योंकि ये cooperative society अब producer company बन चुकी है. ये जब भी shareholder of interstate cooperative society immediately before the date of registration of producer company, they shall deem to be the members and shall be registered from the date when the certificate of incorporation has been provided by the ROC. Now, vesting of undertaking in producer company. तो देखिए जो भी property, assets, obligation, legal compliances pending जो भी cooperative societies के साथ थे या legality थी वो transform हो जाएगी producer company के पास. So all properties, assets, चाहे वो movable हो, immovable हो, belonging to interstate cooperative society as on the date of transformation shall vest in the producer company. All the rights, debts, liabilities, interest, privileges and obligations of the interstate cooperative societies as on the date of transformation shall stand this transferred to and be the rights, debts, liabilities, interest on privileges. All other debts, liabilities, obligation will become the obligation of the producer company. All sums of money due to the interstate cooperative societies immediately before the date of transformation shall be deemed to be due to the producer company. Every organization which was being managed immediately before the date of transformation by the interstate cooperative society shall be managed by the producer company for such period to such extent as may be prescribed. Every organization
which was getting financial, managerial और टेक्निकल असिस्टेंट, जैसे बैंक से कोई लोन मिल रहा था या कोई सब्सिडी मिल रही थी गवर्नमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो सब्सिडी कंटिन्यू करेगी जब आपकी प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगी। अब ये सब्सिडी प्रोड्यूसर कंपनी को दी जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कन्वर्जन हुआ है एक तरह से सोसाइटी से प्रोड्यूसर कंपनी में। तो ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ये कंटिन्यू करेंगे, प्रोड्यूसर कंपनी को दिए जाते रहेंगे। कोई भी कंसेशन अगर दी गई है, इट डीम टू बी हैव बीन ग्रांटेड टू प्रोड्यूसर कंपनी। नाउ द प्रोविजंस व्हिच आर रिगार्ड टू एम्प्लॉइज ऑफ इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई भी सोसाइटीज के एम्प्लॉइज हैं, ये मर्जर की तरह सोचिए आप, मर्जर टेक ओवर की तरह, तो पुरानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां से ट्रांसफर होकर आज मेरी प्रोड्यूसर कंपनी बनी है, उसके एम्प्लॉइज मेरे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज बन जाएंगे। नाउ ये मैं थोड़ा क्रॉप अप जल्दी कर रहा हूं बिकॉज मैं ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है, एनुअल टर्नओवर जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी का 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का है, फॉर कंसेक्यूटिवली 3 फाइनेंशियल ईयर्स इट शैल हैव ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। बाकी कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पेड अप शेयर कैपिटल है, बट प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर टर्नओवर बेस्ड है। चलिए मैं प्रोड्यूसर कंपनी के बाद ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है इसको जरा समझ लें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के। तब तक मॉडरेटर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Sir, is there any special format for the balance sheet of producer companies, or Schedule 3 has to be followed, which is No. applicable? No specific format. This is as it the main commercial private limited company. So, what subsidies are available to producer companies in case there are any? See, there are various departments. One of those department is NABARD, for example, which is doing on behalf of the central government lot of financing and other, and they recommend to the state government that in which area subsidy shall be given. So these clusters have to approach the state government that in their area, if any subsidy is being provided for taking, for example, financial, technical and equipment based support, and maybe for any technology. So these institutions are themselves approached by the government agencies after they are incorporated as a producer company, because these stakeholders are trapped, they are tapped from the ministry side, and these institutions trap them for the purpose of giving benefit under any subsidy rule of a state government. Okay, sir. So now that we have talked about the patronage paid to the members of the producer company, so does that patronage attract income tax on that payment? See, income tax provisions shall be as such applicable. Now, since agriculture income is also exempted, so in the hands of a respective individual, that is my understanding, this will be a negative return. But when you are doing any packaging, like for example, you are a packaging company, right? And you are a normal packaging company, and you are titled as a producer company, so income tax rule shall be applicable as such, which are applicable on a private limited company. Ji. But patronage bonus is given to the individuals, so based on their individual returns. Like for example, if as a patronage bonus you have acquired some cash support actually, so this is the agriculture income, nothing else actually. Okay. Okay, sir. So these were the questions. We can proceed further. Perfect. Now, what is FPO? FPO is a legal entity which is formed by the farmers, and these producer organizations are farmers collective with membership mainly comprising the small and medium, not the big one. These FPOs help in the collectivization of such small and marginal farmers in order to give them the collective strength to deal with the issues. The objectives of forming FPO is to bring them together into producer enterprises so as to give them advantage of scale that they lack as individual producer. एक individual producer जो मैं कहता हूँ 1 क्विंटल कैरेट प्रोड्यूस करता था, अब वो मिल के 100 क्विंटल का कर पा रहा है और निगोशिएट कर पा रहा है, हाई निगोशिएट कर पा रहा है, सप्लाई चेन में घुस पा रहा है, ब्रोकरेज को हटा पा रहा है, डायरेक्टली मार्केट को टैप कर पा रहा है उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू. So this is the benefit. It brings in cost efficiencies in production and marketing. They have the better price realization through aggregation and value addition and risk reduction.
As per the formation and promotion of farmer producer organization scheme, which is approved by the government of India, this year an FPO is a generic name which means and includes farmer producer organizations which are incorporated, registered either under the Companies Act or Cooperative Societies Act of the concerned states. Now FPO चाहे आपके cooperative societies में बन सकते हैं या producer company की तरह काम कर सकते हैं. इस producer company के जो rules हैं वो 2000 में आए थे, but not many FPOs were formed in the initial years due to lack of synergy and awareness among the farmers. Now it was a government vision of forming FPOs. It was to address many challenges which are faced by the farmers, most importantly with the improved access to investments, technology and inputs in the markets. For the purpose of to form under various initiatives of the Government of India, State Government, NABARD and other organizations registered under the Companies Act or the Cooperative Societies Act, these FPOs. Around 5,000 FPOs as of now are there in India. Around 3,200 registered as producer companies and at rest as cooperative societies. These are cooperative societies movement and producer company movements FPO related government initiative. CCEA has approved a scheme. This is the central government department under the Ministry of Agriculture. It has proposed to incorporate 10,000 FPOs in the coming 5 years, and few government agencies will serve the purpose. These 10,000 FPOs would be formed in next 5 years, starting from 1920 to 2023-24. Now, the hand-holding support to each FPO would be continued for 5 years from its years of inception. FPO will be promoted under the one district, one produce basis. तो ये जो FPO 10,000 बनने वाले हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेंगे. ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ बनाए जा रहे हैं. हैंड होल्डिंग इसकी गवर्नमेंट के पास रहेगी 5 साल तक, वो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देगी. So Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched this scheme, which is dedicated central sectoral scheme for formation and promotion of farmer producer organization. And this notification on 29 February 2020, which aims to form 10,000 new FPO in order to provide adequate handholding and professional support to develop economically and sustainably agriculture market. These FPOs with a total budgeted expenditure of 6,866 crore for this purpose. Government ने ये fund निकाल के रख दिया है इन producer कंपनियों को बनाने के लिए. These FPOs will be formed on the production cluster basis in agriculture and allied sector, जो मैंने आपको object पहले बताए थे, while encouraging the concept of one district, one produce to promote marketing, processing and export. Now, one district का मतलब क्या हुआ? Suppose करनाल की मैं बात करूं, वहां राइस बहुत होता है. महाराष्ट्र में मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, वो बनाना बहुत होता है. आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कैश्यू नट बहुत होता है. तो वहां पर सारी की सारी प्रोड्यूसर कंपनी जो काम करेंगी वो एक ही क्लस्टर में काम करेंगी, वो एक ही प्रोडक्ट में काम करेंगी. वन प्रोडक्ट वन क्लस्टर्स. 600-650 प्रोडक्ट के आसपास के क्लस्टर्स बनेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे. नाउ देयर इज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टू फॉर्म ए FPO. तो FPO should have at least minimum 300 members in case of plain areas. आप दिल्ली NCR में बनाना चाहते हैं तो 300 के आसपास मेंबर्स आपको लेने पड़ेंगे FPO का अगर बेनिफिट लेना है. 100 मेंबर्स इन केस ऑफ हिली एरियाज या नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर, वहां 100 मेंबर्स काफी हैं. गवर्नमेंट, अब देखिए गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है अगले 5 साल तक हैंड होल्डिंग के लिए. गवर्नमेंट CEO, मैनेजर या अकाउंटेंट का सैलरी सपोर्ट देगी अगले 5 साल तक. 25,000 पर मंथ सैलरी देगी अकाउंटेंट की, 10,000 पर मंथ. वन टाइम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रही है गवर्नमेंट नाबार्ड के थ्रू टू द मैक्सिमम ऑफ ₹40,000. ऑफिस रेंट दे रही है 48,000 पर ईयर.
यूटिलिटी चार्जेस दे रही है गवर्नमेंट 5 साल तक, मैक्सिमम 12,000 पर ईयर। वन टाइम कॉस्ट फॉर माइनर इक्विपमेंट 20,000 दे रही है। ट्रैवल और मीटिंग या मिसलेनियस कॉस्ट की 18,000 पर ईयर। क्लीनिंग स्टेशनरी या मैक्सिमम अप टू 12,000 पर ईयर। देखिए कितना बड़ा सपोर्ट एक एफपीओ को मिल रहा है, और ये सपोर्ट 10,000 एफपीओ को मिल रहा है अगले 5 साल तक। क्यों मिल रहा है? जिससे सेल्फ सस्टेन हो जाए वो लोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लस्टर पे काम करें। ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं इस एफपीओ को लेते हुए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, सिंचाई योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, स्कीम फॉर कोल्ड चेन बनाई जा रही है, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट की जा रही हैं, स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जा रहे हैं, ओपन मिनिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने बनाए थे। कुछ ई मुद्रा, स्फूर्ति, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। ये कुछ प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के पेन पॉइंट्स हैं या चलाने के पेन पॉइंट्स हैं, लेकिन अब ये इंप्रूव हो रहे हैं। ये पेन पॉइंट्स हैं कि इन प्रोड्यूसर कंपनी में अभी लैक ऑफ इनएडुकेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बिकॉज प्रोड्यूसर इसको चलाते हैं और प्रोड्यूसर इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब मैं पंजाब में ये काम कर रहा था तो उनके डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए मुझे मैनुअल बनाने का काम दिया गया, और उन मैनुअल्स को हमें इन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करना था, जिससे वो अपने काम अपने आप कर पाएँ, चाहे वो कंप्लायंसेस क्यों ना हो, वो मिनट लिखने क्यों ना हो, अकाउंटिंग रखनी क्यों ना हो। तो सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस दिया जा रहा था ऐसे एफपीओ को इस टाटा केमिकल्स के द्वारा। Legal and financial complexities in setting up and managing FPOs was the hitch actually as a legal entity. But वो 20 फरवरी 2020 का जो नया नोटिफिकेशन आया to promote 10,000 FPOs, उसने काफी काम आसान कर दिया है। Ineducateness है, access to credit, lack of risk mitigation mechanism, lack of technical skills and awareness among the producers, inadequate access to market and inadequate access to infrastructure. तो यहां तक आपने जो पेन पॉइंट समझे, इससे आपने ये समझा कि प्रोड्यूसर कंपनी को जब आप प्रोड्यूसर कहते हैं तो उसके लिए मेंबर की जरूरत होगी। वो मेंबर एक एक्टिव मेंबर होगा, प्रोड्यूसर होगा, या प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन होगा। वो या तो प्रोड्यूसर कंपनी में काम करेगा या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम करेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोड्यूसर कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बट उनके जो एग्जिस्टिंग राइट ऑब्लिगेशन है वो डेड नहीं होंगे, वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे नई प्रोड्यूसर कंपनीज के अंदर। आपने गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव मुझसे पढ़ा सुना जो 10,000 एफपीओस को बनाने के लिए है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, और नेशनल लेवल पे जो क्लस्टर का काम देखेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखेगी। तो अब देखिएगा आगे आने वाले समय में अगर मुझे काजू खरीदने हैं तो शायद मैं आंध्र प्रदेश का रुख करूंगा, मुझे मार्केट में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मुझे खारी बावली भी ना जाना पड़े और मुझे सस्ता काजू आंध्र प्रदेश से मिल जाए, बिकॉज वहां पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैश्यू नट्स के अंदर क्लस्टर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। अगर किसी को राइस लेना होगा तो राइस की बेल्ट के लिए या तो कुछ साउथ की चेन में जाएगा या सीधा हरियाणा आ जाएगा। अगर मुझे वेजिटेबल्स में जाना है तो वेजिटेबल्स के भी डिफरेंट क्लस्टर्स होंगे, और वो क्लस्टर्स काम करेंगे डोमिनेंटली और पूरी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो क्लस्टर्स बनाने की जो गवर्नमेंट की मुहिम है बाय वे ऑफ एफपीओ, मिनिमम 300 मैक्सिमम 100, ये बहुत एक्साइटिंग है, बहुत वेलकमिंग है। आप इसमें आगे जाके देखेंगे कि इन क्लस्टर्स ने जो प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेशन किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उससे गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा हो रहा है, बिकॉज इकोनॉमी में हर प्रोडक्ट का एक पार्टिसिपेशन है और उस पार्टिसिपेशन को हम इकोनॉमिकली वाइबल बना सकते हैं इन सबके सिंक्रोनाइजेशन। थैंक यू सो मच। मैं क्वेश्चन ले सकता हूं अब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Yes, sir. So, एक और question है सर कि after the incorporation of producer company, if new members are introduced at later stage, whether the same conditions are applicable that they should be active members, etc. Yes,
In fact, after the incorporation, if a new member, if they are proposed to be introduced at the later stage, they have to carry the same definition of producer. They have to be. It is not so that 10 producers have incorporated a company. Now 20 non-commercial, non-agri person can join that company. No, it can't happen. So it will be the responsibility of the board of directors to cross-check the identity of these type of producers who become the members later on. Okay, sir. Any other person now? मेरे पास समय है. अभी कितना समय है हमारे पास मैम? सर 15 मिनट और हैं अभी हमारे पास. हम ले सकते हैं. तब तक मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स आपसे शेयर कर सकता हूं. जब मैं मैनुअल्स बना रहा था इन प्रोड्यूसर कंपनी के लिए, तो मैंने 2 तरीके के मैनुअल्स बनाए इन प्रोड्यूसर कंपनी के लिए. पहला, उनको पेन की क्या यूटिलिटी होती है उनको ये समझाया गया उस मैनुअल में. रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं, टैक्स रिटर्न्स, जिससे वो सेल्फ सस्टेन बेसिस पर काम कर पाए. उनके जो डायरेक्टर्स बने हैं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर है, जबकि डायरेक्टर्स के लिए प्रोड्यूसर होना जरूरी नहीं है. आपने सीखा होगा डिफरेंस. डायरेक्टर्स में बी अ डायरेक्टर. यहाँ केवल मेंबर्स को प्रोड्यूसर होने की जरूरत है, डेफिनेशन में फिल्टर होके आने की जरूरत है. सो डायरेक्टर तो आप नॉन प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं. सीईओ नॉन प्रोड्यूसर हो सकता है. भाई सीईओ तो होगा जो इतने बड़े क्लस्टर को संभालेगा, एक एग्रीकल्चर पूलिंग से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल, स्पेंसर्स को कोई प्रोसेस्ड या मैं कहूंगा वेजिटेबल सप्लाई चेन में जाना है, और वो किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी को पकड़ती है, तो उसके लिए आसानी है कि एक तो मंडी नहीं जाना पड़ रहा, रेट बड़ा निगोशिएट हो रहा है, प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोड्यूसर को रेट बेटर मिल रहा है, और डायरेक्टली डीलिंग हो रही है, पेमेंट टाइम पर आ रहा है. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो कि मीगर था उसको बेटर प्राइस मिल रहा है, और जो रिटेन हो रहा है प्रॉफिट उसको पैट्रोनेज बोनस की तरह लेटर स्टेज पर मिल रहा है. तो वो तो एक एंटरप्राइजिंग बन गया, उसको तो चिंता ही नहीं रही किसी भी बात की. तो अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट वो उगा रहा है या मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एडवांस हो जाता है. बहुत सारी प्रोड्यूसर कंपनी अपने लोगों को एडवांस लोन देती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज देती हैं, बच्चों की एजुकेशन कराती हैं, बच्चों की शादी ब्याहों में हेल्प की जाती है. बिकॉज वो सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं वो लोग. सोशली एंड इकोनॉमिकली प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं. तो ये एक प्रोड्यूसर कंपनी दूसरे प्रोड्यूसर कंपनी को फिर हेल्प करती है टेक्नोलॉजी वाइज. ये जो कॉन्सेप्ट है, जब 10,000 कंपनियां जो आप लोगों के लिए ही हैं, क्योंकि 10,000 कंपनियां और आपके ऑडिट प्रीव्यू में जुड़ जाएंगी आगे आने वाले 5 सालों में. आप लोग ही बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे उन कंपनीज को, चलाएंगे भी. तो चलाने के लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं. ये मोदी नगर का एग्जाम्पल है. करीब 27 लोगों ने मिलके जयपुर में डेयरी का काम खोला, प्रोड्यूसर कंपनी बनाई. आज वो लोग 5,600 5,800 लोग हैं मेंबर्स, जो राजस्थान के डिफरेंट इलाकों से आके उस प्रोड्यूसर कंपनी को अपना मिल्क कंट्रीब्यूट करते हैं. तो क्या ये दूसरी अमूल नहीं बन जाएगी? वो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर बैठे हुए हैं, एडवांस मशीनरी उन्होंने नीदरलैंड से परचेज की हुई है, उनका प्रोसेसिंग सेंटर बड़ा डायनेमिक है. वो मिल्क और घी, कर्ड, हर चीज बटर में डील कर रहे हैं नाउ. दे आर सप्लाइंग, दे आर एक्सपोर्टिंग आल्सो. तो आप कोई भी प्रोड्यूस ले लें, कैसा भी प्रोड्यूस ले लें, आप पकड़कर वहीं आ जाएंगे. क्या प्रोड्यूसर कंपनी कमर्शियल कंपनी है? आंसर इज यस, बिकॉज दैट इज अर्निंग प्रॉफिट. ये कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कमर्शियल वेंचर है, और जो किसानों के द्वारा किसानों से बनाया गया ग्रुप है. मैं प्रोड्यूसर को किसान ही मानता हूं. किसान एक अलग हो सकता है, बट प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में किसान वर्ड को ही इनडायरेक्टली डाला गया, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ है. तो जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, इनकॉर्पोरेशन से बात करेंगे, प्रोसेस से बात करेंगे, तो आपको उन लोगों से मिलना चाहिए, आपको जाना चाहिए. अब देखिए, गवर्नमेंट ने एक एफपीओ बनाने की इनकॉर्पोरेशन फीस ही 40,000 रुपए रखी है आपको देने के लिए. व्हाट ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. सो you can just have this idea flourished, और चलाना प्राइवेट कंपनी की तरह ही है. ऑडिट में कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई पैक्युलरिटी नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का सेगमेंट को चेंज नहीं हो रहा है, सेम है. तो इसमें आप बहुत अच्छे से आ सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं.
एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था मेरा, प्लीज। सर आपने बोला जो डायरेक्टर नीड नॉट बी ए मेंबर, तो हम जब इनकॉर्पोरेट कराते हैं मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, आउट ऑफ 5 शुड बी द डायरेक्टर, तो यहाँ वहाँ पे कंडीशन डायरेक्टर शुड बी ए मेंबर और नॉट? नहीं सर, मेंबर और डायरेक्टर में कंफ्यूज मत होइए। डायरेक्टर्स हैव ए डिफरेंट एथनिसिटी, दे नीड नॉट टू बी ए मेंबर, दे मे बी ए मेंबर। अगर वो मेंबर होंगे तब उनको इंडिविजुअली प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में आना पड़ेगा फिर। राइट। और अगर वो केवल डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में आने की जरूरत नहीं है। बट हमारे यहाँ तो आप जानते ही, जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है, हस्बैंड वाइफ ही डायरेक्टर है, हस्बैंड वाइफ ही शेयर होल्डर है। तो उस कॉन्सेप्ट को यहां मत लगाइए। अगर प्रोड्यूसर आप डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं तो आप प्रोड्यूसर नहीं हो सकते। तो अगर डायरेक्टर्स मेंबर्स बनना चाहते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट उनको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्टर में वो एज ए एम्प्लॉई होंगे वहां पे अगर मेंबर नहीं है? देखिए, डायरेक्टर्स डेफिनेशन जब कंपनीज एक्ट में आती है तो फिड्यूशरी पोजीशन में आते हैं। होल टाइम डायरेक्टर आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यस, होल टाइम डायरेक्टर्स, इफ नथिंग एल्स हैज बीन जस्ट प्रोवाइडेड फॉर देम। सो ये जो भी डायरेक्टर होगा वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गोपाल जी। इनफैक्ट गुजरात साहब, इसमें डायरेक्टर्स को आप सैलरी भी दे सकते हैं, ऑनरेरियम भी दे सकते हैं, सिटिंग फीस भी दे सकते हैं, बिकॉज वो सुबह से शाम तक आपकी नौकरी कर रहे होंगे। अब आप प्रोड्यूसर कंपनी को उस तरह से समझें, केवल कंपनी नहीं होगी। चलिए एक विजुलाइज करते हैं। पंजाब में 20 लोगों ने मिलके अपने खेतों को क्लब कर लिया, या डिफरेंट जो भी उनके अपने खेत हुआ करते थे उसके प्रोडक्ट को क्लब कर लिया। ये डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन में पक्के हैं, ये मार्केट में निकले। इन्होंने डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट्स या एंड यूजर है उसको, जैसे बिग बास्केट अगर आप देखें, बिग बास्केट इन ए बिग वे प्रोड्यूसर कंपनी से एक्वायर करता है अपना प्रोडक्ट, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, कुछ भी हो, और खुद का फिर अपना डिब्बा बना के बिग बास्केट लिख के और पैकेज फॉर्म में देता है। बट अगर इन 20 लोगों में से आप 18 की बात करें, वो बेचारे कभी भी बिग बास्केट तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज जब उनकी पूलिंग हो गई रिसोर्सेस, इस कॉर्पोरेट कल्चर में आ गए, तो वो आ गए। अब देखिए 3 चीजें कितनी ब्यूटीफुल हुई। मैं अगर एज ए प्रोड्यूसर केवल प्रोड्यूसर कंपनी को प्रोडक्ट दे रहा हूं, मैं दे सकता हूं विदाउट बिकमिंग द मेंबर। मेरे आर्टिकल्स कह सकते हैं मैं नॉन मेंबर्स का भी तो ले सकता हूं प्रोडक्ट, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर कंपनी हूं। अपने मेंबर को तवज्जो दूंगा, बेटर प्राइस अपने मेंबर को दूंगा। आप अगर नॉन मेंबर है, आपको 10 रुपए दूंगा, अपने मेंबर को 12 रुपए दूंगा। ये आर्टिकल में मैं लिख सकता हूं। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये 20 लोगों ने मिलकर निगोशिएशन स्किल्स डेवलप कर ली। इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, या तो सोसाइटी बना लें अमूल की तरह। इनको आज एंटरप्राइजिंग समझानी तो है ना, आज समझाएंगे तब 5 साल 10 साल बाद जाके समझेंगे लोग। और इस एंटरप्राइजिंग में आपका कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर इन इंस्टीट्यूशन के सामने खड़ा हो गया। आज ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने खेतों में केवल गेहूं और चावल उगाऊं। मैं बीच का 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम निकाल के वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, अगर मुझे टेक्नोलॉजी पता हो। ये इंडिविजुअल एज ए फार्मर मुझे नहीं मिलती। ये प्रोड्यूसर कंपनी को जब गवर्नमेंट कोई फायदा देना चाहती है एज ए सब्सिडी, वो ग्रुप को देती है, वो इंडिविजुअल किसान को देती नहीं फायदा। तो जब ग्रुप को फायदा मिलेगा एज ए सब्सिडी, तो वो प्रोड्यूसर कंपनी के कॉन्सेप्ट में फ्लरिश होगा। दैट इज वाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है। मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा उस इश्यू पर, बट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। 10,000 एफपीओ अगर मैं टिपिकल मल्टीप्लाई करूं एवरेज 200 मेंबर से, तो आप देखिए कितना किसान जुड़ गया। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200, और जो इनडायरेक्टली उसको सिस्टम में आ गया, उसकी सप्लाई चेन में आ गया, वो 10,000 इंटू 100 आ गया। और ये ऐसी कंपनियां भी है, तो 200 मैंने एवरेज लिया है, इनमें 10,000 एफपीओ में कुछ 1000 एफपीओ ऐसे होंगे जिसपे मेंबरशिप 10,000 तक पहुंच जाएगी, उससे ऊपर भी चली जाएगी। मैंने कर्नाटका में काम किया है, केरला में काम किया है, दिल्ली एनसीआर में काम किया है, पंजाब में काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है। मैं अभी 2018 लास्ट में विशाखापट्टनम गया था वॉलमार्ट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर। वहां मैंने कैश्यू नट का काम देखा बड़ा क्लोजली। और गुजराल साहब, आप तो बिलीव नहीं करेंगे, हमारा देश ऐसा काजू उत्पादन करता है, मैंने सोचा यार दिवाली पे तो ऐसा काजू हमारे यहां भी नहीं आता, वो सारा एक्सपोर्ट हो रहा है।
आप देखिए क्या जबरदस्त हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे देश में, बट एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, दिस क्वालिटी एक्चुअली और सेम प्राइस उसकी करीब करीब। तो ये ब्यूटी है एफपीओस की। पहले उसकी एफपीओ की जेनेसिस में जाके देन हमें समझाना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को या जो स्टेक होल्डर आना चाह रहे हैं बनाने के लिए। आपके सामने एक ऐसा भी तो कोई ऑनर आ सकता है जो कहेगा कि यार मैं पीछे हूं लेकिन 10 किसान ये खड़े तेरे सामने, 10 प्रोड्यूसर हैं, तू इससे मिलके प्रोड्यूसर कंपनी बना दे, मैं डायरेक्टर बन जाता हूं। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज आओ। दैट इज देयर। सर एक पॉइंट शायद मेरे से, सॉरी मदद से एक पॉइंट शायद मेरे से मिस हो गया। ये अल्टीमेटली प्रॉफिट डिवाइड होते हैं सर मेंबर में जो या सर इसमें जो पैट्रोनेज बोनस की बात की गई है वो पैट्रोनेज बोनस लॉयल्टी बोनस ही है, तो उसमें कैलकुलेशन का आधार होता है। कैलकुलेशन का आधार कैसे है? मैं 1 जनवरी 2021 से मेंबर बना आपकी कंपनी का, आप 1 जनवरी 2022 से मेंबर बनेंगे, तो 1 साल की लॉयल्टी मेरी ज्यादा हो गई ना, उसकी मुझे वेटेज दी जाएगी मैथमेटिकली। और मुझे चाहे मैंने 1 जनवरी 2022 को भी 10 कुंतल आपको दे दिया और मैंने 1 जनवरी 2021 से भी 10 कुंतल आपको प्रोडक्ट दिया, 10 कुंटल्स प्रोडक्ट तो मैंने बराबर दिया है, बट मेरी लॉयल्टी आपके साथ टाइम में ज्यादा है, तो मेरी कैलकुलेशन में पैट्रोनेज बोनस मुझे ज्यादा मिलेगा, नए वाले मेंबर को कम मिलेगा। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं। वो मेथड मेंबर ने जो मेथड है वो मेंबर जी बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और ये कुछ रिटेन भी किया जाता है पैट्रोनेज बोनस, जो कि 3-5 साल में हम बोनस इश्यू की तरह उनको दे देते हैं, उनको शेयर कैपिटल की तरह दे देते हैं। थैंक यू सर। मेरी एक क्वेरी है। क्वेरी ये है कि जो 40,000 रुपए मिलते हैं एफपीओ बनाने में, हम इनको अवेल कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे मिलेंगे, क्या प्रक्रिया क्या है कि सर इसमें जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उन्होंने क्लस्टर बेस्ड एफपीओ की बात की है। तो 3 लेवल पे क्लस्टर्स बन रहे हैं, पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा आपका नेशनल लेवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो मेरे पास 2 लिस्टें हैं, ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, स्टेट का मामला भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है लॉ, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो जब मैं एफपीओ बनाऊंगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट करेगा, स्टेट लेवल पे भी स्टेट करेगा। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रोच करूंगा तो मुझे डीएम के ऑफिस में जाना है, आप डीएम के ऑफिस में जाइए। ओके। स्टेट लेवल पे 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट बनाना चाहते हैं, उनके डीएम से तो मिलना ही है, लेकिन जाके जरा चीफ सेक्रेटरी से मिल लीजिए। और आजकल बता दूं यूपी में तो कम से कम मैं जानता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत एक्टिव है इसमें। ओके। बहुत एक्टिव है रियली। चुनाव का समय या तो मैं तो ब्लंटली कह रहा हूं राइट और दूसरा किसानों का मुद्दा चल रहा है। तो एफपीओ आजकल हमारे यूपी में बहुत बन रहे हैं, बहुत प्रोड्यूसर कंपनी बन रही है। मेरी एक बहन कंपनी सेक्रेटरी हैं जो कि गाजियाबाद से ही हैं, उनके पास तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट्स आते हैं। आई थिंक शी हैज इनकॉर्पोरेटेड मोर देन 50 प्रोड्यूसर कंपनीज इन दिस विसिनिटी एक्चुअली। तो उससे आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं। तो आप नबार्ड में अगर जा सकते हैं तो नबार्ड आप अप्लाई करिए जाके जी। और सेंट्रल लेवल पे आपको जब बड़ा काम करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आपको गलियारों में घूमने की जरूरत नहीं है, उनके सेक्रेटरी साहब को ईमेल भेजने की जरूरत है, प्रोजेक्ट भेजने की जरूरत है, चीफ सेक्रेटरी से रिकमेंड कराने की जरूरत है, आप ऑटोमेटिकली उस साइकिल में आ जाएंगे। ओके। There is one more question in the chat box. Is there any restrictions on formation of FPO, like net worth of the individual, nationality, and existing corporate, etc.? Zero net worth, but you are a producer. You can be a producer. अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। गुजराल साहब आपने सुना होगा ई चौपाल हुआ करती थी, ई चौपाल जिसको कहते हैं ई चौपाल, ये आईटीसी ने कॉइन वर्ड निकाला था। आईटीसी जो बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है हमारे देश की, ये ई चौपाल क्या करती थी, एसएमएस के थ्रू और पहले अपने एक विंग के थ्रू जो कि उनका चारों तरफ फैला हुआ था। अब अगर उसको गेहूं का आटा आशीर्वाद आपको बेचना है तो क्या मंडी में जाके गेहूं खरीदेगी आईटीसी? वो सीधे फार्मर से जुड़ी हुई है, फार्मर के उसने इंटरेस्टेड ग्रुप बना रखे हैं, वो फार्मर अपना प्रोडक्ट पूरा का पूरा क्लब करके आईटीसी को सप्लाई करता है। अब ये केवल रहमो करम पे, प्रकृति के रहमो करम पे नहीं छोड़ता आईटीसी, वो पूरे साल साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड सपोर्ट देता है उन फार्मर्स को ई चौपाल के जरिए। आज व्हाट्सएप के जरिए उनको मौसम की जानकारी दी जाती है, केमिकल कौन सा यूज करना है नहीं करना उसकी जानकारी दी जाती है, कितना केमिकल करना है।
हर साल सॉइल टेस्टिंग कैसे करनी है, पानी की चैलेंजिंग स्कैर्सिटी को कैसे देखना है, ये आईटीसी सपोर्ट कर रहा है, ये उनका खर्चा है। और प्रोड्यूसर कंपनी का बेनिफिट है। पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ग्रीन शेल्टर्स के लिए। आपने देखा ना, बहुत सारी जो हमारी सब्जियां हैं वो ओपन में नहीं होती हैं, उनके ऊपर ग्रीन शेड्स लगाए जाते हैं, मशरूम जैसे उसमें एक है, लाइक फॉर एग्जांपल। तो ये सारी सुविधाएं आपको स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डीएम का ऑफिस है वहां से जाके अप्रोच करना पड़ेगा। थैंक यू दीपक सर, वंडरफुल डिस्कशन एंड मैनी पार्टिसिपेंट आर स्टिल देयर। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और स्पेशली गुजराल साहब का कि जिन्होंने, जिनकी डिमांड पर ये मैंने सोचा था, और जो दीपक सर ऑलरेडी इस टॉपिक को बड़े अच्छे से उन्होंने क्लियर किया। आई डोंट थिंक कि कोई और इस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाता। सो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिएगा सर। कासा इज माय मोबाइल नंबर, और ये जो प्रेजेंटेशन है मैं कासा को भेजने वाला हूँ, ये सबको मेंबर्स को चली जाएगी। श्योर मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को प्रेजेंटेशन और ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यू कैन कनेक्ट विद मी और दीपक सर एनी टाइम फॉर योर डिस्कशन। विद दिस थैंक यू वेरी मच, एंड आई नीड each one of support for coming in this regional to central council. So with this note, I would like to conclude today's session. Gujral sahab, you want to say anything before conclusion? थैंक यू दीपक जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी। थैंक यू सर। काफी देर से मैं वेट कर रहा था भी, सच प्रोड्यूसर कंपनी पढ़ा तो है, लेकिन वर्चुअली हम सुन लेना, किसी से थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है। तो आज बहुत मजा आया सर। इन फ्यूचर वी विल बी टचिंग विद यू। Thank you, Thank Thank you, you, sir. thank you, Sumit ji. Thank you, Thank Sumit ji, you. for Thank this you, Jaya ji. opportunity. Thank you, Thank Kanika you. ji. And thank you all, each one of you. Thank you everyone for attending the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you.